Hello everyone, welcome to all of you on this YouTube channel, Saurabh Goswami, History Optional for UPSC. And today we are going to discuss previous year questions from History Optional paper for the year 2022. This video is a part of our free PYQ lecture series for History Optional for UPSC aspirants covering 6-year questions from 2020 to 2025. And today we are going to discuss year 2022 previous year question, and this is part C of the video. And you all know the format. I have already recorded and uploaded two parts, part A and part B, for the year 2022, and this is part C of the video. So you all know that for modern Indian history segment we have divided our lectures into 4 parts. In part A, I have already discussed the question number 1, A, B, C, D, E. All 5 questions were 10 markers question. So we have already discussed. In part B, we have discussed question number 2, A, B and C. And these are 20, 20 and 10 marker question. And today in part C, we are going to discuss question number 3, A, B and C. So this will be the discussion for today, part C, that is question number 3, A, B and C. तो आप इसके पहले के वीडियोस को देखिए, पार्ट ए, पार्ट बी. आज की वीडियो जो है वो पार्ट सी है. पार्ट ए और बी ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है. चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले तो आप पीडीएफ क्वेश्चन पेपर यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे. यू मस्ट डाउनलोड the PDF question paper from the UPSC website, and here you will get the questions in Hindi and English both. So I've already downloaded and I've already discussed these questions with you. Question number A1, A, B, C, D, E. This we have already discussed in part A of our video. And question number 2, A, B and C. This we have already discussed in part B of our video. And today we are going to discuss question number 3, A, B and C. So this will be the part C of our video. And in the next lecture, I will discuss question number 4, A, B and C. That will be part D of our video. So this is the pattern of our discussion. So today we will discuss these 3 questions. Question number 3A and 3B are of 20 markers. It means these are two are the 20 marker question, and question number 3C is 10 marker question. So here you will see that the total marks are 50. So we are going to discuss 50 marks question today. Here 20 marker question, the word limit is up to 300 words. You all are familiar with this. Here also the word limit is up to 300 words, and for 10 marker the word limit is up to 150 words. So it is very essential that we have to write our answer within the prescribed word limit. For UPSC exam, this is very much essential. It's not like our graduation and post-graduation exam. Here we will have to write the answers in the prescribed word limit. So first let's identify the theme of the questions, that what are the themes which has been selected by UPSC for question number 3, A, B and C. So question number 3A says that, do you think that Indian national movement was a multi-class movement which represented the anti-imperialist interest of all classes and strata? इसका मतलब in Hindi it says that, क्या आप समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुवर्गीय आंदोलन था, मल्टी क्लास मूवमेंट था, जिसमें सभी वर्ग तथा सभी स्तरों के साम्राज्यवाद विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व था. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन सेज दैट, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए. तो क्वेश्चन का थीम बड़ा ही क्लियर है, और वो थीम क्या है? देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इन द ईयर 1885. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन है. और सिंस इंडियन नेशनल कांग्रेस इज एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी थी, तो 1885 के बाद
INC, Indian National Congress, is also synonymous with INM, Indian National Movement। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट दोनों को समानार्थी की तरह यूज किया जाने लगा। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी प्रतिनिधित्व कर रही थी। यानी कि अगर इसी प्रश्न में यहां पर अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखते हैं तो वो क्वेश्चन अलग क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन भी सेम होगा, आंसर भी सेम होगा। यानी कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है यह ऑल क्लास ऑल स्ट्राटा इसको रिप्रेजेंट करता था। ऑल क्लास ऑल स्ट्राटा के जो भी एंटी इंपेरियलिस्ट इंटरेस्ट थे उनको रिप्रेजेंट करना था, ये बताना है। यानी कि ओवरऑल जो थीम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समग्र समझ से संबंधित है। दिस थीम इज रिलेटेड टू अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस। So this theme is very popular theme, one of the most popular theme that has been asked by UPSC. Now, question number 3B says that the British rule had differential impact on the Indian society. This is the first part of the question. यानी ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर विभेदीय प्रभाव पड़ा, डिफरेंशियल इंटरेस्ट पड़ा। Describe in what ways the Indians responded to the revolt of 1857। यानी कि आप यह बताइए कि 1857 के विद्रोह का भारतीयों ने किस प्रकार जवाब दिया, किन तरीकों से जवाब दिया। तो हियर दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स। इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं। पहले तो ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इसके दो हिस्से हैं। पहला जुड़ा हुआ है ओवरऑल ब्रिटिश शासन या औपनिवेशिक शासन की आपकी समझ कितनी है। इस कॉम्प्रिहेंसिव थीम के हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि जो ब्रिटिश रूल है, कॉलोनियल रूल है, इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव डिफरेंशियल रहा। ये तो आप तभी बता पाओगे ना जब ब्रिटिश शासन या औपनिवेशिक शासन की आपकी एक समग्र समझ होगी। दूसरी बात, इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में ये बता दिया कि 1857 का जो विद्रोह है उसमें जो भारतीय समूह थे, अलग अलग भारतीयों के जो समूह थे, उन्होंने किस तरह से जवाब दिया। किसका? ठीक है, 1857 के विद्रोह का भारतीयों ने किस तरह से जवाब दिया, यानी रिस्पॉन्स क्या रहा अलग अलग जो इंडियंस के ग्रुप थे उनका, है ना। तो 1857 की समग्र समझ, ब्रिटिश शासन या औपनिवेशिक शासन की समग्र समझ, द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल, है ना, उसके इफेक्ट क्या थे, 1857 की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। सो आपको क्वेश्चंस देख के लग रहा होगा कि थीम की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी लिख लोगे। और ऐसा नहीं है कि मैं मॉडर्न इंडिया के PYQ कोर्स से मैंने शुरू किया है तो शायद मॉडर्न ईजी होता होगा तो मैंने शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आसानी से आप मेरी मॉडर्न इंडिया की क्लासेस को समझ रहे हो, इतनी ही आसानी से आप वर्ल्ड हिस्ट्री, मेडिवल और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्लास को और PYQs को रिलेट कर पाओगे, क्योंकि सारा का सारा मामला जुड़ा हुआ है आपकी समझ से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से। तो ये दो थीम हमने आइडेंटिफाई कर लिए। तीसरा थीम क्या है? थर्ड क्वेश्चन इज एनालाइज हाउ द रिवॉल्यूशनरीज taught people self-confidence and widened the social base of the freedom movement। यानी कि ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है रिवॉल्यूशनरीज या जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए, क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उनकी रणनीति क्या थी, उन क्रांतिकारी गतिविधियों ने लोगों में किस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास को बढ़ाया, सिखाया। और जाहिर सी बात है कि क्रांतिकारियों का जन समर्थन बहुत व्यापक था और ग्रासरूट लेवल पे भी लोग इनसे जुड़े हुए थे। तो ये पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो सामाजिक आधार है उसको व्यापक कैसे बनाया क्रांतिकारियों ने। यानी कि क्रांतिकारियों की वजह से जो वाइडनिंग ऑफ द सोशल बेस ऑफ द मूवमेंट हुआ, जो सामाजिक ये जो आंदोलन है इसके सामाजिक आधार में बढ़ोतरी हुई। क्योंकि देखो, मास मोबिलाइजेशन आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण विशेषता हुआ करता था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से ये कैसे हुआ, ये पूछा गया है। तो देखो, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, दूसरा ब्रिटिश रूल की समझ, उसके प्रभावों की समझ,
1857 के टॉपिक की समग्र समझ, तीसरा क्रांतिकारी आंदोलन की समझ। यानी ये तीनों क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से आपने कुछ रट्टा मारा और लिख दोगे तो बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे, नहीं। जिस स्टूडेंट की इंटरलिंकेजेस, एक एक कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी होगी, वो बहुत अच्छा आंसर लिखेगा। एंड ट्रस्ट में बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि जब आप हिस्ट्री के बारे में सोचते हो, ऐसा नहीं कि ऑप्शनल, जीएसपी मेंस के क्वेश्चन देखते हो तो आपको लगता है कि बिना फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस के हम आंसर नहीं लिख सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल हो या जीएस मेंस का पेपर हो। इनके आंसर्स बिल्कुल वैसे ही जैसा आप सोशियोलॉजी या साहित्य के आंसर्स लिखते हो, लिटरेचर में आंसर्स लिखते हो, या फिर आप पीएसआईआर फिलॉसफी में आंसर्स लिखते हो, बिल्कुल वैसे ही लिखे जाते हैं। बट पढ़ने पढ़ाने की एक ढर्रे का सही नहीं होने की वजह से जब भी बच्चा प्रश्न देखता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले बम्बार्डमेंट होता है फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस का। क्योंकि आप हर दूसरा यूट्यूब वीडियो जो आप खोल के देख रहे हो, जो भी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो, क्या चल रहा है? फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस की बम्बार्डमेंट। ChatGPT से फैक्ट्स चैप्टर डाल दिया, रिवोल्ट ऑफ 1847 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तैयार किया और पीपीटी लगा के उसको लोग रीड किए जा रहे हैं, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस। तो देखो, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन तो इसके पहले के फेज़ में भी ChatGPT और तमाम इस तरह के एआई टूल्स नहीं थे, उसके पहले भी गूगल एक अच्छा सोर्स था, या आपके पास बुक्स होती थी। तो देखो, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस की कमी नहीं है आज के ज़माने में। ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड की स्थिति है आज। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस उससे एक अलग दिशा में होते हैं। ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको कितना ज़्यादा फैक्ट पता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी मैच्योर है। तो चलिए, हर क्लास में मैं थोड़ी बहुत बातें इसलिए बताता हूँ कि ये चीज़ें आपको आपके सब्जेक्ट के लिए मोटिवेशन देंगी और आप धीरे धीरे सही ट्रैक पे अपनी तैयारी को ले आ पाओगे। और मेरा ये जो PYQ प्रोग्राम है, इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। पूरे प्रीलिम्स और मेंस के बीच के ड्यूरेशन में डेली एक PYQ वीडियो अपलोड होती रहेगी। और यकीन मानिए, चूँकि यहाँ PYQs को डिस्कस करते हुए हमने थीम एनालिसिस को भी इंक्लूड किया है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम सीधा अपने क्लास की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 3A से करेंगे। ये सारे प्रश्न तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो सीधा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3A पर। अब चूंकि यहाँ से हम डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं प्रश्न को एक बार और पढ़ता हूँ। लेट मी रीड द क्वेश्चन वन मोर टाइम। आपको क्वेश्चन का एरिया, थीम, वो तो याद ही हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस विषय से जुड़ा हुआ था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन न याद हो, बट फिर भी ये याद होना चाहिए कि किन किन मेजर एरियाज से सवाल पूछे जा चुके हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स के, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो देखिए, क्वेश्चन जुड़ा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, बता चुका था। डू यू थिंक दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज अ मल्टी क्लास मूवमेंट विच रिप्रेजेंटेड द एंटी इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट? ये दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। ऑफ ऑल क्लासेस एंड स्ट्राटा, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो डू यू थिंक भी लिखा हुआ है, यानी हमें अपना ओपिनियन बताना है। तो हमारा क्या ओपिनियन होगा? वो तो जो बैलेंस्ड ओपिनियन होता है उसी के साथ हमें जाना होता है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, डू यू थिंक दैट इट वाज अ मल्टी क्लास मूवमेंट? दूसरी चीज पूछ रहा है कि विच रिप्रेजेंटेड एंटी इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस एंड स्ट्राटा। साथ ही साथ इन द सेकेंड पार्ट इट इज गिवन कि गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड्स या फ्रेजेस लग रहे हैं, उनको आप सबसे पहले हाईलाइट करोगे। यू आर गोइंग टू हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड कीवर्ड्स हियर in the question. You will also highlight that this question has been divided into two parts. This is part A and this is part B of the question. In this way, once you will break the question, once you will deconstruct the question, then you will be able to justify the essence or demand of the question. Otherwise, it will be very much difficult. तो परेशान नहीं होना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी याद हो रहे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Here Indian National Movement is synonymous to Indian National Congress. And when it is asking multi-class था कि नहीं, एंटी इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था कि नहीं,
It means it is simply asking about the character of Indian national movement. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के तो मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उन मल्टीपल कैरेक्टर्स में से यहां पे किसी एक कैरेक्टर की बात की गई है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट, सो वी ऑल नो दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसा मूवमेंट था? इट वॉज अ मास मूवमेंट. ये मास मूवमेंट था. इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास मूवमेंट. ये मास मूवमेंट था. यानी इन द इनिशियल स्टेजेस व्हाट वी सी दैट आई एम सेइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बोथ आर सिनोनिमस. ध्यान रखना बार बार. इन द इनिशियल स्टेजेस व्हाट वी सी, जैसे 1885 टू 1905 ये एक फेज है. फिर दूसरा फेज है 1905 से 1919 और तीसरा फेज है 1919 से 1947. हियर आई एम डिस्कसिंग द थीम. ठीक है, आंसर तो बहुत इजी है, तो थीम थोड़ा मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा ताकि मुझे पता है कि क्लासेस में आपकी तैयारी किस लेवल की है और फाउंडेशन क्लासेस में क्या पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ पाओगे. दैट्स व्हाई आई एम एंटरिंग इनटू अ मोर डिटेल. तो देखो, व्हेन यू हैव स्टडीज ऑलरेडी, इतना तो एटलीस्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये 3 स्टेजेस हैं. तो आपने क्या देखा कि ये जो इनिशियल स्टेज था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्टेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो इन इनिशियल स्टेज ऑफ इंडियन मूवमेंट व्हाट वी सी दैट दिस इंडियन मूवमेंट वाज डोमिनेटेड बाय एलिटिस्ट ग्रुप्स. ये एलिटिस्ट ग्रुप से डोमिनेटेड था. यानी कि यहां पर जो मॉडरेट पॉलिटिक्स थी, दैट मॉडरेट पॉलिटिक्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज elite politics. Some critics say like this, कुछ critics ऐसा कहते हैं. इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे यहां पे 1905 के बाद जब एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट होता है, 1905 में क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल. स्वदेशी मूवमेंट जब होता है, व्हेन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड, ये भी आपने पढ़ा होगा 1905 टू 1978. सो हियर व्हाट वी सी द broad-based mass character of the Indian national movement emerges. यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट का मास कैरेक्टर रिवील होता है. स्वदेशी मूवमेंट में क्या है? मास मोबिलाइजेशन भी है, जन भागीदारी है बड़े पैमाने पर. स्वदेशी मूवमेंट में क्या है? स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेशन है वेमेन का लार्ज स्केल पर, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है लार्ज स्केल पर. यानी कि देखो, व्हेन गांधी विल कम, ही विल लॉन्च हिज मास मूवमेंट इन 1920-22, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. बट ऐसा नहीं है कि मास मूवमेंट गांधी पहली बार लेके आए. वो ऑलरेडी मास मूवमेंट पहले हो चुका था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान. गांधी ने क्या किया कि उस मास मूवमेंट के सोशल बेस को ज्यादा बढ़ाया, वाइडन किया सोशल बेस को. एंड एट द सेम टाइम गांधी व्हाट डिड, गांधी ने क्या किया कि वो जो मास मूवमेंट का सोशल बेस था, मास मूवमेंट जो है इसको पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनाया. ये गांधी का कंट्रीब्यूशन है. आगे बहुत सारे क्वेश्चंस इन पे जुड़े हुए आए भी हैं मेंस में, तो आई विल डिस्कस विथ यू. सो व्हाट डू यू सी हियर? यू सी कि हियर द मास कैरेक्टर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इमर्जेस. एंड व्हेन गांधी अपीयर्स ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म 1919 to 1947, what we see that Indian national movement emerges as one of the first great mass movement and broad mass movement. And here we see the remarkable participation of peasants. Here we see the remarkable participation of workers. Here we see the remarkable participation of students. Here we see the remarkable participation of women. Here we see that the revolutionaries suspended their revolutionary activities and they came in support of the Gandhian mass movement, and that is called, it is called the first great mass movement. तो हमने क्या देखा कि this is also a feature और character of the movement. ये भी तो कैरेक्टर ही है. जैसे in this question क्या पूछा गया है कि मल्टी क्लास मूवमेंट था कि नहीं? ये एक कैरेक्टर है मूवमेंट का, ये भी एक कैरेक्टर है. मास मूवमेंट एंड ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट. बट हम जब मास मूवमेंट और ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट की बात करते हैं, so what you see that here we are talking about the participation of different groups in this national movement. अलग अलग समूहों के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं.
we are also talking about this idea that the Indian national movement was ideologically diverse also. इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था? आइडियोलॉजिकली डाइवर्स भी था. जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के डेवलपमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज आइडियोलॉजिकली डाइवर्स आल्सो. फॉर एग्जांपल, moderates dominated 1885 to 1905. Then we see what? In the same Indian National Congress, there are extremists as well. In the same Indian National Congress, later what we see कि ये जो extremism है, when it will become more radical, so this will be what? This will be the revolutionary activities. तो revolutionaries भी हैं इसी national movement में. Later what we see कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद आफ्टर 1917 we see the group of communists and socialists also appear in this national movement. कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट भी अपीयर होते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या जो मास कैरेक्टर है, ये पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ मासेस तो है ही है. At the same time, what we see that Indian national movement was ideologically diverse also. And this mass participation, these different ideological, you can say, groups were working together. Why they were working together? Because all of them were fighting for what? All of them were fighting against what? ये इंपीरियलिज्म. वो सब किसके खिलाफ लड़ रहे थे? इंपीरियलिज्म के खिलाफ. यानी इट इज वेरी क्लियर दैट एंटी इंपीरियलिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म, ये तो एक कैरेक्टर है ही है कि मल्टी क्लास है तो अलग अलग क्लासेस का पार्टिसिपेशन है. डिफरेंट आइडियोलॉजिकल डाइवर्स ग्रुप्स केम टुगेदर. व्हाई दे केम टुगेदर? बिकॉज ऑल ऑफ देम वांटेड टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये सब चाहते थे कि इंडिया से क्या हो जाए? ब्रिटिश रूल खत्म हो जाए. और सबको रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल पार्टी क्या थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस. और इंडियन नेशनल कांग्रेस हम क्या देखते हैं 1905 ऑनवर्ड्स, हम क्या देखते हैं कि स्वराज की बात इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से उठने लगती है. दे विल स्टार्ट डिमांडिंग फॉर स्वराज. लेटर होम रूल लीग मूवमेंट में भी बात की जाती है ना, स्वराज की बात की जाती है. फिर आगे आप बढ़ते हो तो डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है नेहरू रिपोर्ट में. फिर आप आगे बढ़ते हो, है ना, तो आप देखो कि पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, कंप्लीट स्वराज की बात की जाती है. ये भी आपने पढ़ा है. जब उसको एक्सेप्ट नहीं करते ब्रिटिश तो स्टेडियम शुरू हो जाता है. ठीक है. तो फाइनली दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इज सिनोनिमस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, ओके, इज हैविंग दिस anti-imperialist or it is representing the anti-imperialist interest of all classes because they are demanding freedom from British rule. But the nature of demand frequently changes from time to time. ठीक है कि वो शुरू में डिमांड क्या रहा है? मॉडरेट रहा है, बट बाद में जाके वो डिमांड बहुत ही रेडिकल हो जाता है. हम क्विट इंडिया यहां तक आ जाते हैं. जस्ट इन अर्ली फेजेस व्हाट वी सी द डिमांड्स आर वेरी मच the demands we are putting before the British are through moderate methods, moderate means, but later what we see that our demands became more and more radical. इसी नेशनल मूवमेंट का एक और कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर क्या है कि नॉन वायलेंस, अहिंसक आंदोलन है अंडर गांधीयन लीडरशिप. गांधीयन लीडरशिप में यानी कि द मास मूवमेंट हैज बीन डिसिप्लिन्ड बाय नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का यूज करते हुए मास मूवमेंट को क्या बनाया गया है? बड़ा ही डिसिप्लिन्ड बनाया गया है. ये चीज है. लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, है ना, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज अचीवमेंट्स वी कैन से दैट द इंडियन नेशनल मूवमेंट, नो डाउट इट वाज इंक्लूसिव. इसमें कोई शक नहीं है कि इंक्लूसिव था. इट वाज रिप्रेजेंटिंग ऑल क्लास एंड ऑल स्ट्रेटा. इट वॉज इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव था. इट वॉज रिप्रेजेंटिंग ऑल क्लासेस एंड ऑल स्ट्राटा, ये सभी क्लासेस और सभी स्ट्राटा को रिप्रेजेंट करता था. बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो.
इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बिकॉज व्हाट वी सी फ्रॉम टाइम टू टाइम in the same Indian national movement, we also see social divisions and communal divisions from time to time. So this is what the limitation of this Indian national movement कि from time to time we see what social division and communal division. जैसे अगर आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करो, है ना, तो वहां पे क्या है कि जो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स है, दलित को भी चाहिए सेपरेट इलेक्ट्रेट, तो ये क्या दिखला रहा है, सोशल डिवीजन, यानी कि जो स्टैंड है, गांधी पार्टिसिपेटेड, है ना, तो जो स्टैंड है, सेकंड में तो पार्टिसिपेट किया था आपने, तो जो स्टैंड है, ठीक है, उस स्टैंड से अलग हट के आपको सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए। मुस्लिम्स वे गिवन सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम 1909 के एक्ट से दे दिया, समय समय पे इस SES को मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक्सटेंड किया जाता रहा। तो धीरे धीरे क्या किया, है ना, कि इन स्पाइट ऑफ all these achievements, in spite of being this national movement as an inclusive national movement, we see there are some limitations, and at different time we see, at different junctions we see what there are some limitations. Okay, limitations, social division की limitations है, communal divisions की limitations है, साथ ही साथ we also see there is also some limitation, है ना, जैसे कि जो movement हैं, जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि एजुकेशन से क्या आता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस से ग्रोथ एंड कंसोलिडेशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स है, बट क्या वो एजुकेशन जो है उसकी रीच थी ग्रास रूट लेवल तक या एरियाज तक, विलेजेस तक, नहीं। सो देयर वाज लिमिटेड extension of all these things. So what we can say that there were different dimensions or features of this Indian national movement, है ना, there are three phases. One is called moderate phase, 1885 to 1905. The second is called 1905 to 1919. This is called extremist phase. And 1919 to 1947, this is called Gandhian phase of Indian national movement. So when we observe, okay, when we do a micro analysis of the theme, we can say yes, when we talk about Indian national movement, it was a unique blend of what? Mass mobilization, mass participation, moral politics, nationalism. It was one of the most distinctive and unique anti-colonial struggles all in the world. ये चीजें हैं। अब देखो क्वेश्चन में जो ज्यादा फोकस किया गया है वो कहाँ फोकस किया गया है, in this question what has been more focus, so you will see the more focus is on this particular aspect, that is मल्टी क्लास मूवमेंट। मल्टी क्लास मूवमेंट वाले आइडिया पे ज्यादा फोकस किया गया। तो देखो मल्टी क्लास, तो इन योर आंसर यू विल राइट दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ डाइवर्स क्लासेस, डाइवर्स क्लासेस का पार्टिसिपेशन था, एंड यू विल राइट नेम ऑफ सम क्लासेस, कुछ चीजें आप बता देना, जैसे इफ वी से, जैसे अगर हम क्लासेस की बात करें, यहाँ पे क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो वी कैन से बोर्जुआ, बोर्जुआ पार्टिसिपेशन है, वर्कर पार्टिसिपेशन है, पीजेंट पार्टिसिपेशन है, ऑल दीज आर व्हाट क्लासेस। मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन है, वी कैन ऑल्सो से सम जमींदार्स, इवन सम सेक्शंस ऑफ जमींदार्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, ठीक है, इवन सम किंग्स और द रूलर्स ऑल्सो सपोर्टेड, बट द नंबर इज फ्यू। सो दिस इज व्हाट पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, तो अलग अलग क्लास भी है। अच्छा देखो गांधीयन मूवमेंट की एक खास बात क्या है, is an important aspect of Gandhian movement is Gandhi believes in the idea of class cooperation. गांधी किस बात में यकीन करते हैं, क्लास कोऑपरेशन में। गांधी does not believe in this idea of class conflict, and due to this belief Gandhi was successful in mobilizing diverse classes in his movement. ये इसी आइडियोलॉजी में विश्वास था कि गांधी ने अलग अलग क्लासेस को मोबिलाइज किया, अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए। जैसे इसके पहले मैंने क्वेश्चन में बताया भी था कि गांधी वॉज सक्सेसफुल, है ना, जैसे एक ग्रुप था मॉडरेट, दूसरा ग्रुप क्या था, एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट के मेथड्स को मॉडरेट्स के ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्या किया गांधी ने, लाके मिला दिया, एक यूनिक ब्लेंड तैयार किया। हाउ इट वॉज पॉसिबल, ड्यू टू दिस बिलीफ ऑफ क्लास कोऑपरेशन, ये इसी वजह से पॉसिबल है। देखो पीजेंट को, वर्कर को भी गांधी अपने मूवमेंट में जोड़ते हैं, जैसे पीजेंट चंपारण याद होगा,
वर्कर्स में अहमदाबाद खेड़ा याद होगा। यानी कि गांधी बिफोर बीइंग लॉन्च्ड एज अ नेशनल लीडर, बिफोर स्टार्टिंग हिज फर्स्ट ग्रेट मास मूवमेंट, he himself is leading the Champaran, Kheda, Ahmedabad, he is doing different regional experiments, है ना, and these regional experiments, through these regional experiments he is getting connected with the peasants and workers. गांधी ने एक और काम किया, चूंकि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट इज ऑल्सो सिनोनिमस विद गांधी। तो जो मैं बता रहा हूं वो आपके आंसर के थीम से ही जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। गांधी ने क्या किया बताया आपको, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, है ना, मॉडरेट्स के ऑब्जेक्टिव्स को एक्सट्रीमिस्ट के मेथड्स के साथ लाके जोड़ दिया। गांधी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो रिवॉल्यूशनरी सस्पेंडेड देयर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, बिलीविंग दैट गांधीज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, स्वराज विद इन 1 ईयर, तो वो हमें 1 ईयर में स्वराज मिल जाएगा। तो गांधी जब कहते हैं स्वराज इन 1 ईयर, when Indian national movement, the first great mass movement supported by Indian National Congress, when it says Swaraj within 1 year, obviously it is representing what, anti-imperialist interest, है ना, ये उसी interest को क्या कर रहा है, represent कर रहा है। So there is no any doubt that Indian National Congress was representing a multi-class movement. Indian National Congress was functioning as, you can say, a multi-class Indian National Congress was functioning as a multi-class umbrella organization, है ना, and in this way it was incorporating different groups, different classes all together, ठीक है। एक और वर्ड मैं आपको समझा दूं here, another word has been focused, that is anti-imperialist interest। अब तो समझ गए ना anti-imperialist क्या है। When we are saying we are fighting to end the British rule in India, स्वराज चाहिए हमें, सेल्फ रूल चाहिए हमें, होम रूल चाहिए हमें, it means that if we are fighting for Swaraj, it means we are fighting against British imperialism. We are fighting against the presence of British in India. If we are saying no to economic exploitation, Indian National Congress में क्या है, Indian National Movement में जो early nationalists हैं, they do what, economic critique करते हैं, ये आपको पता होगा, economic critique, जैसे de-industrialization, decline of handicraft, train of wealth पढ़ा ना आपको। So if you are doing economic critique, if the early nationalists like Dadabhai Naoroji etc., if they are doing economic critique, if they are criticizing that British British colonialism in India is doing what, unilateral transfer of wealth from India to Britain, it means that this is what, anti-imperialist interest. British in India, they were promoting what, a kind of racial discrimination, and if you are saying no to any kind of racial discrimination, if we are raising demand that we also want political participation, if you are saying we want dominion status, if we want our Indian members in councils, legislative councils, है ना, so this all is what, this all is indicating that we are doing what, we are demanding for, or we are doing what, we are representing, और इंडियन नेशनल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटिंग एंटी इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस वगैरह की मांग ये दिखाता है कि हम एंटी इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा आइडिया है, ये बात आपको समझनी है। अब इस बात को हमेशा समझना कि दूसरी तरफ जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है, हालांकि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, इसके पहले भी एक टॉपिक बताया था, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे किसी भी क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। दैट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया इज डूइंग व्हाट, ठीक है, ब्रिटिश इन इंडिया आर ट्राइंग फॉरवर्ड, दे आर ट्राइंग टू मेंटेन परपेचुइटी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो भारत में ब्रिटिश शासन की निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं, और इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, एक है यूज ऑफ फोर्स और दूसरा क्या होता है, लीडरशिप थ्रू कंसेंट, और आइडियोलॉजिकल यू कैन से टूल्स, है ना, टू एस्टैब्लिश द परपेचुइटी ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश ने इंडिया में वो किया, कोएर्सन यूज ऑफ फोर्स तो किया ही किया, बट इसके साथ साथ उन्होंने लीडरशिप थ्रू कंसेंट ऑफ द रूल्ड, यानी रूल्ड मतलब वी इंडियंस आर रूल्ड, और हमने हमारे ऊपर शासन करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दे दी, उनको नेतृत्व करने के लिए हमने अनुमति दे दी। यही हो गया लीडरशिप थ्रू कंसेंट ऑफ द
रूल्ड। हमने अनुमति क्यों दे दी? क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ सिद्धांत गढ़े। वो सिद्धांत क्या थे? उन्होंने ये सिद्धांत गढ़ा, सिविलाइजिंग मिशन पे हम है, व्हाइट मैन बर्डनशिप है हमारा, ठीक है, वी आर हियर टू मेक यू सिविलाइज, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सुपीरियर देन योर सिविलाइजेशन। तो तमाम ऐसी चीजें गढ़ी जिससे कि वो क्या कर सके, इंडिया पे लंबे समय तक रूल कर सके। बट अल्टीमेटली हमने क्या किया, ये जो आइडियोलॉजिकल टूल्स थे, और यू कैन से दैट इन the initial stages there was lack of political awareness among the Indian masses। तो political awareness की कमी थी। There was the lack of understanding of nationalist feelings and sentiments। In that case British were successful to get what? Leadership through consent of the ruled। हमें पता ही नहीं था कि हमारा शासन हो रहा है, हमने अंग्रेजों को अलाउ कर दिया, उल्टा हम उनकी मदद भी कर रहे थे, हम सैनिक भी बन रहे थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। But when the level of political awareness will increase, what will happen? Different groups, जैसे जैसे जिस समूह की राजनीतिक चेतना जागृत होगी, बढ़ेगी, वो आके राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जब उसको समझ में आएगा कि भाई हमारा शोषण हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे लोगों को ये समझ में आएगी वो इस आंदोलन में जुड़ते चले जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा तो वो एंटी इंपेरियलिस्ट इंटरेस्ट्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में जुड़ते चले जाएंगे, और इस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट एक ऑल क्लास मूवमेंट बन जाएगा। ये बात आपको समझनी है। तो जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, जैसे बिपान चंद्रा की बुक आप लोग ज्यादातर पढ़ते हो क्लास 12 की एनसीईआरटी, तो मैं वहीं से रिलेट करके बताऊं, तो जब आप क्लास 12 की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे बिपान चंद्रा की, तो यू विल रीड, उसमें ये बताया गया है, उसी का ये अप्रोच है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस सिनोनिमस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, और फिर आगे चलकर 1919 ऑनवर्ड्स आईएनसी इज इक्वल टू आईएनएम इज इक्वल टू गांधी, वो सब क्या हो जाता है? सिनोनिमस हो जाता है। और बिपान चंद्रा लिखते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था? इंक्लूसिव था, ब्रॉड बेस्ड था, मल्टी क्लास मूवमेंट था, है ना। और कांग्रेस ने जो एंटी इंपेरियलिस्ट इंटरेस्ट है इसको रिप्रेजेंट किया, समय समय पे अपनी मांगे अंग्रेजों के सामने मजबूती से रखी, यानी इंपेरियलिज्म का, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म का विरोध भी किया कांग्रेस ने। दिस इज द आइडिया ऑफ द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। बट व्हेन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस विल लुक एट दिस इशू, दे विल से कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बुर्जुआ लेड मूवमेंट था, है ना, बुर्जुआ लेड मूवमेंट था, और यहां मास पार्टिसिपेशन तो दिखता है, बट लीडरशिप कुछ लोगों के हाथ में थी, एंड यू कैन से द रेडिकलिज्म वाज कंट्रोल्ड। और कंट्रोल्ड रेडिकलिज्म मतलब उस रेडिकलिज्म को कंट्रोल कौन कर ले रहा था? तो जब गांधी आते हैं तो सत्याग्रह और अहिंसा की टेक्निक से उस रेडिकलिज्म को कंट्रोल कर लेते हैं। जब सबल्टर्न हिस्टोरियंस जैसे रंजीत गुहा लिखेंगे, सो डेफिनेटली ही विल राइट दैट नेशनलिज्म क्या था? एक एलीट प्रोजेक्ट था, है ना, और जो पीजेंट ट्राइबल्स की वॉइसेस थी वो ऑटोनमस वॉइसेस थी। इतिहास में उसको बहुत जगह नहीं मिला, बट यही है, ये चीजें हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो बैलेंस अप्रोच है वो यही है कि व्हेन वी से इंडियन नेशनल मूवमेंट or Indian National Congress, so undoubtedly we can say that there was multi-class participation। उसमें multi-class participation था, but we cannot deny this fact that the power structure was unequal। हम इस fact से इनकार भी नहीं कर सकते कि power structure क्या था? unequal था। तो now you have some background understanding। अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई बैकग्राउंड की कि मल्टी क्लास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एंटी इंपेरियलिज्म क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। मुझे यहां से आ रही है, अभी तो वर्ल्ड हिस्ट्री आने दो, ठीक है, एंशिएंट आने दो, मिडिवल आने दो, फिर आपको पता चल जाएगा आपने क्लास में क्या पढ़ा है, पीवाईक्यू डिस्कस करते करते, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर, देखते हैं मॉडल आंसर। देयर आर टू फॉर्मेट्स, वन इज पैराग्राफ फॉर्मेट आंसर और दूसरा क्या है? बुलेट या पॉइंट वाइज फॉर्मेट आंसर। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस पैराग्राफ फॉर्मेट आंसर। तो आपको पता है कि पहला पैराग्राफ जो होता है वो इंट्रोडक्शन, लास्ट, कंक्लूजन, और इसको हम क्या मानते हैं? मेन बॉडी मानते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट क्या लिखा है? आई एम रीडिंग दिस, दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज अ मल्टी क्लास मूवमेंट। बता दिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट को मल्टी क्लास मूवमेंट माना ही जाता है। It is often characterized as anti-class movement, bringing together diverse social groups under a shared anti-imperialist agenda।
मल्टी क्लास मूवमेंट है, मतलब डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप एक एंटी इंपीरियलिस्ट एजेंडा जो कि शेयर्ड एजेंडा था उसको लेके एक साथ आए। फ्रॉम इट्स अर्ली फेज, अपने शुरुआती चरण में, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकॉर्पोरेटेड एजुकेटेड इलीट्स एंड इमर्जिंग बोर्जुआ एलिमेंट्स। यानी अपने शुरुआती चरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्यादातर जो लोग जुड़े वो पढ़े लिखे शिक्षित ऊंचे वर्ग के लोग, ऊंचे तबके के लोग थे, एजुकेटेड एलीट्स थे, इमर्जिंग बुर्जुआ। वाइल गांधीयन एरा आते आते एक डिसाइसिव शिफ्ट होता है, एक डिसाइसिव शिफ्ट होता है, और वो शिफ्ट क्या है कि अब ये जो बुर्जुआ एलिमेंट है, ये एजुकेटेड एलीट है, आंदोलन इसके हाथ से निकल के मास मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ गया, जिसमें पीजेंट, वर्कर, स्टूडेंट्स, वुमेन, इन सब का पार्टिसिपेशन हुआ। यानी इस पैराग्राफ में मैंने ये बता दिया कि मास मूवमेंट था, लिमिटेशंस भी बता दी कि इनिशियल फेज में क्या था, डोमिनेटेड बाय इलीट क्लास, बुर्जुआ क्लास, बट गांधीयन फेज आते आते एक डिसाइसिव शिफ्ट होता है और उसमें डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल केम टुगेदर, सब बहुत सारे वर्ग के लोग एक साथ आ जाते हैं और ये गांधी के लीडरशिप में हुआ, ये आप जान के। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकली, है ना, इसको समझो। तो पॉलिटिकली क्या बताया मैंने कि मूवमेंट सच एज एनसीएम एंड सीडीएम witnessed unprecedented participation across classes, suggesting a broad-based national awakening। यानी पॉलिटिकली अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखें तो इसमें अप्रत्याशित भागीदारी है, अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन है, लगभग सभी क्लासेस का पार्टिसिपेशन है, क्रॉस क्लासेस, क्लासेस की बात अभी मैंने बताई थी, ठीक है, कि बुर्जुआ भी है, राइट, वर्कर भी है, सब बताया था। सजेस्टिंग अ ब्रॉड बेस्ड नेशनल अवेकनिंग। अब देखो इकोनॉमिकली कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मैनिफेस्टेड में, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में क्या था, हाई टैक्सेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रेरियन डिस्ट्रेस। तो इसकी वजह से इट प्रोवाइडेड अ कॉमन ग्राउंड फॉर एंटी इंपीरियलिस्ट यूनिटी। जब शोषण होगा, जैसे मान लो एग्रीकल्चर में पीजेंट्स का शोषण होगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बेरोजगारी होगी, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट होगा, तमाम ऐसी चीजें होंगी, तो ये क्या करेगा, दिस विल गिव अ कॉमन ग्राउंड। जब अलग अलग समूह का, अलग अलग समूह के लोगों का, डाइवर्स ग्रुप्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो वो एक शेयर्ड एजेंडा के साथ साथ आ जाएंगे और ये क्या करेगा, एंटी इंपीरियलिस्ट यूनिटी को दिखाता है। अब देखो सोशली हम क्या देखते हैं, द मूवमेंट एक्सपेंडेड टू इंक्लूड प्रीवियसली मार्जिनलाइज सेक्शंस इंडिकेटिंग द इंक्लूसिव कैरेक्टर। ठीक है, मार्जिनलाइज सेक्शंस को भी इंक्लूड करता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। However, this multi-class participation did not necessarily translate into equal representation। Limitation हम बता रहे हैं कि मल्टी क्लास पार्टिसिपेशन तो था बट इसमें सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। नाउ हियर आई हैव रिटन द historian's perspective। सुमित सरकार argues that the movement was led by bourgeois, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, which sought to contain mass radicalism। बोर्जुआ ने मास रेडिकलिज्म को कंट्रोल किया। क्यों कंट्रोल किया, टू सेफगार्ड इट्स ओन इंटरेस्ट। वो कहते हैं वो मतलब अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड, सुरक्षित रहे, इसलिए मास रेडिकलिज्म को उसने कंट्रोल किया। समय समय पे जो रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट थी उसको सप्रेस कर दिया। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, जैसे द एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ मूवमेंट्स, एग्जाम्पल भी देना था, हमने एग्जाम्पल दिया कि आफ्टर द इंसिडेंट्स लाइक चौरी चौरा रिवील्स elite anxiety towards uncontrolled popular assertion। जैसे सुमित सरकार ये कहते हैं कि मूवमेंट शुरुआती चरण में क्या देखते हैं कि बुर्जुआ कंट्रोल में था और मास रेडिकलाइजेशन को बुर्जुआ ने सप्रेस कर दिया। एग्जाम्पल क्या दिया कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो चौरी चौरा नाम का एक इंसिडेंट हुआ। उस चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से क्या किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया। क्यों वापस ले लिया गया, क्योंकि ये एलीट एंग्जाइटी थी टुवर्ड्स अनकंट्रोल्ड पॉपुलर असर्शन। ठीक है, यानी कि मास जो है वो आगे बढ़ के लीड कर रहे थे। अब निर्णय क्या लेना है उन्होंने तय कर लिया। वायलेंस का एक्शन किसका था, मासेस का, वो ज्यादा रेडिकल हो गया, यानी अब जो एक्शन था वो किसके हाथ में आ रहा था, है ना। तो उस बात को लेके एलीट एंग्जाइटी है, और समझ गया इस बात को, तो ये मार्क्सिस्ट का अपना ओपिनियन है। सबल्टन क्या कहते हैं, जैसे रणजीत गुहा का भी यहां पे मैंने जिक्र किया है, तो लाइक रणजीत गुहा कंटेंट दैट पीजेंट्स ऑफन एक्टेड autonomously driven by local grievances rather than nationalist ideology। और ये कॉमन पॉइंट है, याद कर लेना, पीजेंट वॉइस ऑटोनोमस, ट्राइबल वॉइस ऑटोनोमस, लिख दो। ठीक है, कि पीजेंट के अपने ग्रीवेंसेस थे और वो किसी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से बनने की बजाय उनकी अपनी ऑटोनोमस वॉइस थी। ये सबल्टर्न कहते हैं, लेकिन फिर भी ये उतना बैलेंस नहीं है,
ठीक है, नेशनल मूवमेंट से जोड़ के तो देखना ही पड़ेगा। फर्दरमोर डाइवर्जेंट क्लास इंटरेस्ट परसिस्टेड, नेशनल मूवमेंट में डिफरेंट क्लासेस थे, सबके अपने इंटरेस्ट भी थे। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांडेड प्रोटेक्शनिज्म, इंडस्ट्रियलिस्ट ने डिमांड की प्रोटेक्शनिज्म की। पीजेंट्स वर डिमांडिंग लैंड रिफॉर्म्स, पीजेंट्स लैंड रिफॉर्म की डिमांड कर रहे थे। वर्कर्स वर डिमांडिंग बेटर वेजेस, वर्कर्स बेटर वेजेस की मांग कर रहे थे। दीज डिमांड्स नॉट ऑलवेज फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू कांग्रेस एजेंडा, ये सारे मांग हमेशा पूरी तरह से कांग्रेस के एजेंडा में इंटीग्रेट नहीं हुए। शेखर बंदोपाध्याय दस हाइलाइट्स, शेखर बंदोपाध्याय हाईलाइट करते हैं द इन अनइक्वल पावर रिलेशन विद इन द मूवमेंट। तो शेखर बंदोपाध्याय क्या कहते हैं, देखो अनइक्वल पावर रिलेशन विद इन द मूवमेंट, ये मैंने बताया था। शेखर बंदोपाध्याय का कहना है कि मल्टी क्लास मूवमेंट था, कोई डाउट नहीं है, मल्टी क्लास पार्टिसिपेशन था, कोई डाउट नहीं है, बट यहां पे क्या था, जो मल्टीपल, एक बात क्या थी कि जो मल्टीपल क्लास थे उनमें अनइक्वल पावर रिलेशन था, ये शेखर बंदोपाध्याय ने कहा। फाइनली व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, देयरफॉर व्हाइल द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अनडिनाइबली मल्टी क्लास इन कंपोजिशन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मल्टी क्लास नहीं था, ये मल्टी क्लास मूवमेंट था। इट्स रिप्रेजेंटेशनल कैपेसिटी वाज अनइवन, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशनल कैपेसिटी इक्वल नहीं थी, वो अनइवन थी। इट फंक्शनड एज अ हेगेमोनिक कोएलिशन दैट unified diverse groups against colonialism but did not entirely reconcile their conflicting socio-economic aspirations, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स को साथ लेके चला इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ लेके चली कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, लेकिन उनके जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस थे उनको पूरी तरह से रिकॉन्साइल नहीं कर पाई। अगर उनके सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को रिकॉन्साइल कर ही ली होती इंडियन नेशनल कांग्रेस तो पार्टीशन क्यों होता, है ना। तो ये तो फेलियर है ना, तो ये बात हमने बताई। नाउ द सेम आंसर व्हेन वी विल राइट इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट, द आंसर विल बी लाइक दिस। दिस इज द इंट्रोडक्शन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब यहां पे देखो आईएनसी लेड इंडियन नेशनल मूवमेंट is widely viewed as a multi-class movement, uniting diverse social groups under a common anti-imperialist framework. Broad-based composition था, लोग इतने सारे ग्रुप्स एक साथ आए तो उनके साथ आने का बेसिस क्या था, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ यूनिटी। तो देखो ब्रॉड बेस्ड कंपोजिशन था, हाउ, तो अर्ली फेज डोमिनेटेड बाय एजुकेटेड एलिट्स एंड इमर्जिंग बोर्जुआ 1885 to 1905। बताइए गांधीयन फेज एक्सपेंडेड पार्टिसिपेशन टू पीजेंट्स, वर्कर्स एंड वुमेन। Movements like NCM and civil disobedience reflected mass mobilization, ये भी आपको पता है। Basis of unity, सब साथ आए तो साथ आने का आधार क्या था, Common experience of colonial exploitation, सबका औपनिवेशिक शोषण हो रहा था, सब इस चीज को किसी न किसी तरीके से औपनिवेशिक शासन से सब प्रभावित थे। Each and every group was affected by this colonial exploitation, जैसे हाई टैक्सेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, दिस इज द एग्जाम्पल। इमर्जेंस ऑफ अ शेयर्ड नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस अक्रॉस रीजन्स एंड क्लासेस, ठीक है। शेखर बंदोपाध्याय ने जो बात कही थी, इंक्लूसिव था लेकिन अनइक्वल था, वही बात है, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन थे, मासेस का पार्टिसिपेशन था, बट लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर। आपको पता है डिसीजन मेकिंग पावर तो कुछ ही लोगों के हाथ में रहेगी, अभी भी आंदोलनों में यही होता है, डिसीजन मेकिंग पावर कुछ ही लोगों के हाथ में रहेगी। लीडरशिप रिमेन्ड लार्जली इन द हैंड्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, लीडरशिप एजुकेटेड मिडिल क्लास के हाथों में रही। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, जो सुमित सरकार का पर्सपेक्टिव अभी बताया था आपको कि सुमित सरकार क्या कहते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ बोर्जुआ लीडरशिप कंट्रोल मूवमेंट एंड मॉडरेटेड मास मूवमेंट। मॉडरेटेड मास मूवमेंट क्यों है, क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन था मूवमेंट का उसको सप्रेस किया टाइम टू टाइम। जैसे चौरी चौरा का एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट्स फियर ऑफ रेडिकलाइजेशन, कि रेडिकलाइजेशन होगा तो जो मासेस हैं वो मूवमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, है ना। तो इस फियर से एनसीएम को सस्पेंड कर दिया गया, ये मार्क्सिस्ट ओपिनियन है। सबल्टन व्यू क्या है, व्हाट इज द सबल्टन व्यू हियर, रंजीत गुहा सेज पीजेंट्स एक्टेड ऑटोनोमसली ड्रिवन बाय लोकल ग्रेवेंसेस। तो हमेशा सबल्टन कहेंगे कि पीजेंट्स वॉइस ऑटोनोमस, ट्राइबल वॉइस ऑटोनोमस, ठीक है ना, तो वही अप्रोच है। डाइवर्जेंट क्लास इंटरेस्ट, ठीक है, जैसे अलग अलग क्लास थे और सबके अपने इंटरेस्ट हित भी अलग अलग थे, सब अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट शॉर्ट प्रोटेक्शनिज्म, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको क्या चाहिए था, प्रोटेक्शनिज्म।
पीजेंट्स डिमांडेड लैंड रिफॉर्म, पीजेंट को क्या चाहिए था? लैंड रिफॉर्म। वर्कर्स डिमांडेड राइट्स, वर्कर्स को क्या चाहिए था? राइट्स चाहिए था। फिर शेखर बंदोपाध्याय का स्टेटमेंट है कि अनइक्वल पावर रिलेशन था, यानी शेखर बंदोपाध्याय कहते हैं ना कि अनडाउटेडली मास पार्टिसिपेशन था, बट इसमें अनइक्वल पावर रिलेशन था। कंक्लूजन क्या है? व्हाइल द मूवमेंट वाज मल्टी क्लास इन कंपोजिशन बट इट फंक्शनड एज अ हेगेमनिक और हेजेमनिक कोalition विद अनइवन रिप्रेजेंटेशन। अनइवन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, यानी लिमिटेशन बताते हैं शेखर बंदोपाध्याय। सक्सेसफुली यूनाइटिंग डाइवर्स ग्रुप्स अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, अलग अलग ग्रुप्स को यूनाइट किया कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, बट फेल टू फुल्ली रिकॉन्साइल देयर कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस। इंडियन नेशनल मूवमेंट ने पूरी तरह से, है ना, सभी लोगों के सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को रिकॉन्साइल नहीं कर पाई, है ना। पार्टीशन वगैरह इसी का रिजल्ट था। सो आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के कैरेक्टर से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन है, तो जब उन क्वेश्चंस की भी मैं थीम को डिस्कस करूंगा तो सब कनेक्ट होके आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, राइट। नाउ अच्छा देखो, द आंसर, देयर इज वन मोर मॉडल। दो मॉडल तो यहां मैं बता रहा हूं, एक मॉडल और होता है जो सबसे प्रीमियम मॉडल होता है, जो यहां पर इंट्रोडक्शन मैं बोर्ड वर्क करके खुद लिख के बताऊंगा, मेन बॉडी, फिर वहां पे यूज ऑफ ग्राफ एंड स्केचेस, कंक्लूजन, है ना, यूज ऑफ ग्राफ एंड स्केचेस, इसका भी जो कोर मटेरियल है, एसेंस है, तो वो मेरा प्रीमियम प्रोग्राम है। उसके कुछ मॉडल्स 1-2 साल के मैं बाद में अपलोड करूंगा बिफोर मेंस एग्जाम की, आपको एक इंसाइट मिल जाए। बट उस तरह की क्लासेस मेरे पेड क्लासेस का हिस्सा होती है। ये क्लासेस भी अच्छी हैं और बहुत अच्छी हैं, ठीक है। आप पूरा यूट्यूब खंगाल डालोगे, इस लेवल की क्लास नहीं मिलेगी, लेकिन इतना कुछ फ्री में दे रहा हूं तो मैं पढ़ाऊंगा क्या। इसके आगे का भी एक स्टेज है, सुपीरियर एंड रिफाइंड स्टेज, वो मेरे पेड सब्सक्रिप्शन में होता है, ठीक है। चलिए, हालांकि उसके भी एटलीस्ट 2 और 3 इयर्स के मॉडल मैं दे दूंगा आपको मेंस के पहले, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 3B, द ब्रिटिश रूल हैड डिफरेंशियल इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, डिस्क्राइब in what ways Indians responded to the revolt of 1857। तो सबसे पहले तो एक तो इसने होलिस्टिक थीम उठा लिया कि ब्रिटिश रूल जो है, इसका जो इम्पैक्ट था वो क्या है? डिफरेंशियल इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी पे। तो अब आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करना है? ब्रेक करना है। इट इज सेइंग दैट इंडियन सोसाइटी पे ब्रिटिश रूल का डिफरेंट इम्पैक्ट था। तो इंडियन सोसाइटी के कंपोनेंट्स को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो। नाउ फर्स्ट वी विल डिकोड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पहला पार्ट क्या? भारतीय समाज पर अंग्रेजी शासन का विभेदीय प्रभाव पड़ा। एक हिस्सा ये है, और इस क्वेश्चन का एक दूसरा हिस्सा भी है, पार्ट बी भी है। सो देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए को पहले डिकोड तो करो। जब आप इंडियन सोसाइटी कहते हो, व्हेन यू से इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी मीन्स व्हाट? इंडियन सोसाइटी का मतलब क्या है? इंडियन सोसाइटी के कंपोनेंट्स की बात करो। इंडियन सोसाइटी के कंपोनेंट्स की बात करोगे तो जैसे प्रिंसेस हो गए, जैसे इंडियन सोसाइटी के कंपोनेंट्स कौन हो गए? जमींदार्स हो गए। इंडियन सोसाइटी के कंपोनेंट्स कौन हो गए? पीजेंट्स हो गए। इंडियन सोसाइटी के कंपोनेंट्स कौन हो गए? इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए। इंडियन सोसाइटी के कंपोनेंट्स कौन हो गए? आर्टिजन्स हो गए। इंडियन सोसाइटी का कंपोनेंट कौन हो गया? मिडिल क्लास। अब इसमें चाहो तो जितना आप कंपोनेंट लिख सकते हो, जैसे यहां पे सेपॉइज लिख दो, है ना, या फिर यहां पे आप लिख सकते हो, मतलब ऐसे और भी कंपोनेंट्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। सो व्हेनेवर वी आर सेइंग इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी मींस व्हाट? इंडियन सोसाइटी का मतलब क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और डिफरेंशियल इंपैक्ट का मतलब क्या है? हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंटली। ब्रिटिश रूल ने, देखो, डिफरेंशियल इंपैक्ट का मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स दैट हाउ ब्रिटिश रूल impacted different sections differently। अलग अलग सेक्शंस पे समाज के अलग अलग तरीके से प्रभाव डाला। जैसे आप एक एग्जांपल दूं मैं, प्रिंसेस डलहौजी जब आता है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाता है तो वो क्या कहता है? ठीक है, तो अगर कोई राजा है और उसका नेचुरल हेयर नहीं है, गोद लिया हुआ सन है या डॉटर है, तो उसको जो राइटफुल
ओनर नहीं माना जाएगा उस स्टेट का, ठीक है। तो इससे किसका अधिकार प्रभावित हुआ? राजकुमारों का। तो बताओ प्रिंसेस या राजकुमार पे असर डाला कि नहीं डाला? अच्छा, जमींदार का एग्जांपल दे दो, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जैसे परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। एक तरफ तो जमींदार को अपने हेरिडिटरी ओनर मान लिया, साथ ही साथ जमींदारी राइट्स को ट्रांसफरेबल बनाया, सनसेट लॉ लगा दिया और कहा कि इफ जमींदार फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू ऑन टाइम, जमींदारी राइट्स कैन बी टेकन अवे, इट विल बी ऑक्शनड और इसको बेच दिया जाएगा किसी और को। तो बताओ जिन जिन जमींदार की जमींदारी राइट्स छीनी, जहां जहां सनसेट लॉज लगा, तो डू यू थिंक दैट दे विल बी डिससेटिस्फाइड? ऑब्वियसली दे विल बी डिससेटिस्फाइड। पीजेंट्स के साथ क्या था आपको पता है कि देवर डिफरेंट लैंड रेवेन्यू मॉडल्स। पीएसएस था, परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इसके अलावा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। ये सब आपने पढ़ा है। इन सब का इंपैक्ट पीजेंट्स पे क्या रहा? इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्स, किसान गरीब होते चले गए। द पीजेंट्स बिकेम लैंडलेस। Independent peasants became landless peasants. They became tenants on their own land where PSS permanent system of settlement was applied. Peasants were trapped in the vicious cycle of debt. करके दुष्चक्र में फंस गए। पीजेंट्स से क्या मतलब, जो भी रेवेन्यू रेंट कलेक्ट करने का मैकेनिज्म था, अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है? पीजेंट्स के ऊपर है ना। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या था, जो मैक्सिमम बेनिफिट था वो अंग्रेजों के पास चला जाता था, है ना। तो तमाम ऐसी चीजें थे। फेमाइंस, ड्रॉट्स में सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन था? पीजेंट से था। इंडस्ट्रियल वर्कर्स का क्या है बताओ कि इफ बाय द ब्रिटिश पॉलिसीज, इफ ब्रिटिश विल डू व्हाट, ऑफिशियली जानबूझ के अनफेयर टैरिफ पॉलिसी से, इफ दे विल डू व्हाट, डिक्रीज द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, सो द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज विल कोलैप्स, नॉट इंडस्ट्रीज इन मॉडर्न सेंस, धीरे धीरे कोलैप्स होंगे। जो रिच एंड प्रॉस्परस इंडियन टाउन्स एंड सिटीज थे उनकी कंडीशंस खराब होगी। तो यहां जो काम में लगे हुए लोग हैं वो बेरोजगार होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे। और उधर एग्रीकल्चर, कृषि की भी हालत खराब है। तो कृषि की हालत खराब है तो यहां से बेरोजगार हुए लोगों को एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में एकोमोडेट नहीं किया जा सकता, तो ये डबल चैलेंज हो गया। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, इनकी भी हालत खराब। आर्टिजन्स, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट से क्या होगा? आर्टिजन्स की हालत खराब होगी। मिडिल क्लास रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से परेशान है, ठीक है। मिडिल क्लास जो है वो इस बात से भी परेशान है कि इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, है ना, जो भी सुपीरियर पोस्ट थे, दैट ऑल वेर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश पीपल, ठीक है। इंडियंस को हमेशा सबऑर्डिनेट बना के रखा जाता था। इट मींस दैट मिडिल क्लास वाज हैविंग टैलेंट, ओके, बट मेरिटोक्रेसी को प्रमोट नहीं किया जाता था। he was not getting, middle class was not getting opportunity, so obviously there will be dissatisfaction. तो डिससेटिस्फेक्शन होगा इनका, ये चीजें है। अब सवाल ये है कि अब तो समझ गया ना कि ब्रिटिश रूल हैड डिफरेंशियल इंपैक्ट ऑन डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी, अलग अलग प्रभाव रहा। व्हाट वेज दे रेस्पॉन्डेड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, इसमें और भी ग्रुप्स बता सकते हो, जैसे ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल कस्टम ऑफ सती अबॉलिशन, विडो रिमैरेज प्रमोशन एक्ट, है ना, 1829, 1856। तो क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स इंडियंस नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे ब्रिटिश डोंट हैव द राइट टू इंटरफेयर इन आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो व्हाट विल हैपन, ऑर्थोडॉक्स इंडियंस दे आर ऑल्सो डिससेटिस्फाइड, ये भी डिससेटिस्फाइड है। सेपॉइज आर ऑल्सो डिससेटिस्फाइड, ओके, सेपॉइज भी पहले से डिससेटिस्फाइड है। पीजेंट्स क्या है, डिससेटिस्फाइड है, ओके। सो व्हाट वी सी कि हर समूह, हर ग्रुप किसी ना किसी तरीके से क्या है, डिससेटिस्फाइड है। तो हाउ दे विल रिस्पॉन्स, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना, 1857 के रिवोल्ट में हाउ दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्स। सो ईच एंड एवरी ग्रुप विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। पहली चीज कि क्या सबका रेस्पॉन्स एक जैसा होगा? व्हाट विल बी देयर आंसर? रेस्पॉन्स विल बी सेम, इक्वल, इवन और अनइवन। तो हम कहेंगे इंडियंस, यहां पे है ना कि इंडियंस रेस्पॉन्डेड, कैसे रेस्पॉन्ड किया, तो आप बताओगे इंडियंस रेस्पॉन्स जो है वो क्या है, अनइवन है। ये बताना बड़ी जरूरी है। कई बार क्या होता है, वी डोंट हैव द टाइम टू राइट द होल स्टोरी, सब कुछ लिखने का समय नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, है ना,
कुछ क्रक्स लिख देते हैं बातों का, तो एग्जामिनर समझ जाता है, वहां से भी नंबर मिलता है। तो रिस्पॉन्स अनइवन था। क्यों कह रहा हूं अनइवन था? जैसे देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857, व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रीस्टोर मुगल रूलर, है ना, मुगल रूल को रीस्टोर करना था। और रीस्टोरिंग मुगल रूल, ये क्या था? प्रोग्रेसिव ऑब्जेक्टिव था कि रिग्रेसिव ऑब्जेक्टिव था? रिग्रेसिव ऑब्जेक्टिव था। तो जो एजुकेटेड क्लास है वो इसके साथ क्या करेगा, है ना, इस ऑब्जेक्टिव के साथ खुद को कंफर्टेबल नहीं पाएगा कि भाई ये तो बात वही हो गई कि फिर पुराने जमाने में हम वापस लौट के जाए। यहां पे डेमोक्रेटिक या पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात नहीं हो रही है। रिवोल्ट ऑफ 1857 से यू आर गोइंग टू ब्रिंग बैक द सेम ओल्ड मिडिवल ऑर्डर। तो व्हाट विल हैपन? यहां पे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उसका रिस्पॉन्स क्या है? एजुकेटेड मिडिल क्लास इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी ना, तो उसका रिस्पॉन्स क्या है? तो उसका रिस्पॉन्स है न्यूट्रलिटी। ऐसा मत लिखना कि डिड नॉट सपोर्ट, आप क्या लिखोगे? न्यूट्रलिटी। उनका रिस्पॉन्स क्या था? न्यूट्रलिटी। मेरी बात समझ गए? प्रिंसेस का रिस्पॉन्स क्या था? तो प्रिंसेस में देखो, प्रिंसेस में भी दो ग्रुप्स थे। प्रिंसेस के दो ग्रुप थे, जमींदार ग्रुप के दो ग्रुप थे। एक ग्रुप क्या था? लॉयल प्रिंसेस जमींदार हु वर लॉयल टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल के प्रेजेंस के लिए लॉयल थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल बना रहे क्योंकि दे वर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कॉलोनियल स्ट्रक्चर। बट देयर ऑन द अदर साइड देयर वर अनदर ग्रुप ऑफ प्रिंसेस, रूलर्स, जमींदार्स, जैसे द रूलर्स हु हैव लॉस्ट देयर स्टेट, जैसे सब्सिडियरी, ये सब पढ़ते हो ना आप, तमाम पॉलिसीज हैं। तो अगर किसी राज्य का, जैसे अवध वगैरह, एनेक्सेशन हो जाएगा, इफ द स्टेट विल बी एनेक्स्ड, है ना, रूलर से उसका राज्य ही छीन गया है, उस रूलर की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी में लगे हुए जो लोग थे वो सब लोग बेरोजगार हो गए, सबको एक साथ फायर कर दिया गया है, आर्मी डिस्बैंड कर दी गई है। तो व्हाट विल हैपन? दे विल ऑल कम एंड सपोर्ट रिवोल्ट ऑफ 1857, लाइक इन द केस ऑफ अवध। ठीक है, वो सब रिवोल्ट ऑफ 1857 में सपोर्ट करेंगे। डिपोज जमींदार सपोर्ट करेंगे, सनसेट लॉ से जिनकी जमींदारी छिन गई है सपोर्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम देयर विल बी वन ग्रुप हु विल एक्ट लाइक ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म, वो अंग्रेजों को प्रोटेक्ट भी करेगा रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान। ठीक है, पीजेंट्स क्या करेंगे? रिवोल्ट को सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? बिकॉज, है ना, सेपोइज आर व्हाट? सेपोइज आर अल्टीमेटली पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म। ठीक है, जो है तो 1857 का रिवोल्ट, इट इज इमीडिएट कॉज सेपोई इशू, है तो वैसे ये सेपोई म्यूटिनी इन द इनिशियल स्टेजेस, बट लेटर इट वाज सपोर्टेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप्स ने क्या किया? इसको सपोर्ट किया। ऑर्थोडॉक्स इंडियंस विल कम एंड सपोर्ट रिवोल्ट ऑफ 1847। वो क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि वो कल्चरल इंटरफेरेंस की वजह से दे आर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश, वो अंग्रेजों से खुश नहीं है ना। सो दैट इज कॉल्ड डिफेंसिव रिवाइवलिज्म। ठीक है, उसको डिफेंसिव रिवाइवलिज्म कहते हैं। सो दिस विल हैपन। ठीक है, तो दीज आर द टू ब्रॉड पार्ट्स ऑफ योर क्वेश्चन कि ब्रिटिश रूल हैड डिफरेंशियल इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इट मींस दैट फर्स्ट डीकंस्ट्रक्ट, तोड़ दो उसको। इंडियन सोसाइटी मींस क्या, डिफरेंशियल इंपैक्ट मींस क्या? इसका मतलब है ब्रिटिश रूल का इंपैक्ट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पर डिफरेंट है। ठीक है, तो कैसे कैसे ये बता दो, और आप अपने हिसाब से कुछ और भी पॉइंट्स लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो आंसर मैं बता रहा हूं यही है ना, इसके अलावा यू कैन राइट, है ना, और भी अपने तरीके से अपनी क्रिएटिविटी यूज करके लिख सकते हो, और फिर कैसे इन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया वो लिख सकते हो। सो वी ऑल नो दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, हर बात हम लिख नहीं सकते। इसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 सेपोई म्यूटिनी, मियर सेपोई म्यूटिनी हम नहीं मानते हैं। नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रॉडर पार्टिसिपेशन था, डिफरेंट ग्रुप्स केम टुगेदर टू सपोर्ट रिवोल्ट ऑफ 1857। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं रीजनल वेरिएशंस थी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, और पीजेंट ग्रेवेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। बट लास्टली जो एक बिपान चंद्रा का मैं कंक्लूजन आपको बताता हूं नेशनलिस्ट हिस्टोरियन को, वो याद रखिएगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था वो, है ना, इट वाज नॉट मियर म्यूटिनी। ठीक है, म्यूटिनी नहीं था, इट वाज मोर देन रिवोल्ट, रिवोल्ट से ज्यादा था। बट फर्स्ट ग्रेट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना, या फर्स्ट नेशनल मूवमेंट का जो पहला स्ट्रगल है, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कहना थोड़ा इसको लिमिटेड कर देता है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहेंगे तो चूंकि इसका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, ब्रिंगिंग बैक द ओल्ड मिडिवल रूल, है ना, ओल्ड मिडिवल स्ट्रक्चर, मुगल रूल को लेके आना, तो ये कहीं ना कहीं इसको
लिमिटेड बना देता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब देखो आंसर लिखते हैं, आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। सो दिस आंसर 20 मार्क्स का है, सो वी हैव टू राइट 300 वर्ड्स हियर। सो दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन, this is what conclusion, this is what main body. So in introduction part I have written British rule in India brought profound but uneven changes across different sections of society. ठीक है, समाज के अलग अलग हिस्सों पर इसका अलग अलग वो रहा है, शेप द वेरियस, और उनके रेस्पॉन्सेस भी अलग अलग रहे हैं। while some group experienced dispossession and economic hardship, others benefited from the colonial policies resulting in contrasting reactions. पहले ही पार्ट में मैंने बता दिया कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट प्रोफाउंड चेंजेस बट अनइवन चेंजेस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश शासन की वजह से तमाम जगह पे हमें चेंजेस देखने को मिलता है। ये चेंजेस क्या है? अनइवन चेंजेस है, जिसकी वजह से लोगों के रेस्पॉन्स भी उसी तरह के होंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। जैसे कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से उनको कठिनाई होगी, उनका अधिकार छीनेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे समूह होंगे, कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो इन कॉलोनियल पॉलिसी से जिनको फायदा मिलेगा। तो दोनों का जो रिएक्शन होगा वो अलग अलग होगा। सो व्हाट वी सी इन द इंट्रोडक्शन पार्ट आई हैव रिटन कि देयर आर कॉन्ट्रास्टिंग रिएक्शंस, है ना। वन ग्रुप इज बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल रूल, द अनदर ग्रुप इज ओके you can say is facing challenges and hardships due to the presence of colonial rule. So the response of both these two groups will not be the same, है ना। This is what contrasting responses, इसी को मैंने क्या कहा, contrasting responses। जैसे the princely class was significantly affected by policies like doctrine of lapse and policy of annexations, resulted or leading many dispossessed rulers such as Nana Sahab, Rani Lakshmibai एक्टिवली सपोर्ट द रिवोल्ट। यानी जो प्रिंसली क्लास है वो क्या करेगा? रिवोल्ट को सपोर्ट करेगा। इसी तरह से पीजेंट्स एंड सेपॉइज, इनकी हालत देखो। सेपॉइज आर पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, दे वर बर्डन्ड बाय हेवी लैंड रेवेन्यू डिमांड्स एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, बट एट द सेम टाइम दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द अपराइजिंग। यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, इसका बैकबोन कौन है? तो मैंने आंसर में बताया बैकबोन कौन है? पीजेंट्स प्लस सेपॉइज। They are burdened by heavy land revenue demands, इससे ज्यादा burdened है, and discriminatory practices, they form the backbone of the uprising. Artisans के बारे में बताया, क्या बताया कि artisans affected by deindustrialization, उन पे असर किसका पड़ा है? deindustrialization का, decline of handicraft का, they lost their traditional livelihoods, परंपरागत जीविका के साधन खत्म हो गए, and they also participated in, है ना, several reasons, वो भी अलग अलग हिस्सों में participate किए हैं, workers भी, artisans भी। फिर आगे क्या लिखा? अब यहां पे देखो, however not all sections supported the revolt, सभी सेक्शन ने रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया। जैसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो ब्रिटिश के लॉयल बने रहे। एग्जांपल मैंने बताया हैदराबाद एंड कश्मीर। बहुत सारे जमींदार ऐसे थे who were getting benefit from colonial land settlements, जो कॉलोनियल लैंड सेटलमेंट से जिनको फायदा मिलता था। द इमर्जिंग एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो इमर्जिंग एजुकेटेड मिडिल क्लास था इंडिया में, पार्टिकुलरली इन बंगाल, खासतौर से बंगाल में, लार्जली स्टेड अलूफ, यानी कि इट लार्जली रिमेन न्यूट्रल, ये न्यूट्रल बना रहा, व्यूइंग द रिवोल्ट एज फ्यूडल एंड लैकिंग प्रोग्रेसिव विजन। एजुकेटेड मिडिल क्लास को लगता था कि रिवोल्ट का नेचर फ्यूडल है और इसमें प्रोग्रेसिव विजन नहीं है। क्यों प्रोग्रेसिव विजन नहीं? बिकॉज दे वांट टू ब्रिंग बैक द ओल्ड मिडिवल ऑर्डर बैक, रिस्टोर मुगल रूलर, तो इसलिए इट वाज न्यूट्रल। हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी लिखा मैंने। क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव? नेशनलिस्ट स्कॉलर्स व्यू 1857 एज अ ब्रॉड बेस्ड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। कैम्ब्रिज कैसे देखते हैं? लोकलाइज्ड एंड फ्रेगमेंटेड नेचर। सबल्टन कैसे देखते हैं? पीजेंट एजेंसी। ठीक है। एरिक स्ट्रोक्स अंडरलाइन रीजनल वेरिएशंस इन द पार्टिसिपेशन। तो क्वेश्चन ही इसी बात से जुड़ा हुआ था, है ना, कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, प्रश्न ही इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि अलग अलग समूहों पे अलग अलग प्रभाव, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में की पॉइंट्स अब बता दो। जैसे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस तो कहेगा ये ब्रॉड बेस्ड था, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल था। कैम्ब्रिज क्या कहते हैं? कैम्ब्रिज देखो वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, तो दे विल से लोकलाइज्ड और फ्रेगमेंटेड। ठीक है। सबल्टन का फोकस क्या होगा? पीजेंट वॉइस, ऑटोनोमस, पीजेंट एजेंसी, ट्राइबल, इन पे ज्यादा फोकस होगा। एरिक स्टोक्स बात करते हैं अंडरलाइन रीजनल वेरिएशंस इन पार्टिसिपेशन। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज revolt of 1857 did not evoke a uniform response, but it reflected the differential impact of British rule.
It was a complex mosaic of support, opposition, and neutrality, shaped by specific socio-economic interests rather than unified national consciousness. यानी रिवोल्ट कंक्लूजन ये है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनका रेस्पॉन्स कैसा रहा है? अनइवन रहा है। ठीक है, ये चीज है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म रेस्पॉन्स रहा। ये एकदम याद रखना, अनइवन या नॉन यूनिफॉर्म रेस्पॉन्स। कैसे? सम डिड व्हाट? सम केम एंड सपोर्टेड रिवोल्ट ऑफ 1857, सम केम एंड प्रोटेक्टेड ब्रिटिश इन इंडिया, अंग्रेजों को बचा लिया रिवोल्ट ऑफ 1857 में। दे बिकेम ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म, वो ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म हो गए, जैसे हैदराबाद कश्मीर के रूलर या जो लॉयल जमींदार टू द ब्रिटिश हैं। कुछ क्या हुआ? न्यूट्रलिटी सेप्ट, न्यूट्रल बने रहे, जैसे एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनके सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वेरी करते थे और उसी के अकॉर्डिंग इनका रेस्पॉन्स भी था। तो इन 1857 रिवोल्ट, 1857 के रिवोल्ट में एक सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन इज व्हाट? दैट वी आर लैकिंग यूनिफाइड नेशनल कॉन्शियसनेस। हाईलाइट कर लेना इसको। रिवोल्ट ऑफ 1857 में रेस्पॉन्स क्या है? अनइवन है, नॉन यूनिफॉर्म है। वी आर लैकिंग व्हाट? वी आर लैकिंग अ यूनिफॉर्म नेशनल कॉन्शियसनेस, क्योंकि कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने अंग्रेजों को प्रोटेक्ट किया और कुछ क्या रहे? न्यूट्रल बने रहे। दिस इज द आंसर। नाउ इफ वी राइट द सेम आंसर इन बुलेट फॉर्मेट, सो द आंसर विल बी लाइक दिस। इंट्रोडक्शन क्या है? रिवोल्ट ऑफ 1857 रिफ्लेक्टेड वेरिड रिस्पॉन्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स अलग अलग सोशल ग्रुप से। ठीक है, शेप्ड बाय अनइवन इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन इंडियन सोसाइटी। देखो, इंडियन सोसाइटी पे ब्रिटिश पॉलिसी का इंपैक्ट भी एक जैसा नहीं था। इंडियन सोसाइटी का अलग अलग हिस्सों पे इंपैक्ट अलग अलग था। तो जिस पे जैसा इंपैक्ट है उसका वैसा रिस्पॉन्स है। जिसको प्रॉफिट है, लाभ है कॉलोनियल स्ट्रक्चर से, वो अंग्रेजों को सपोर्ट करेगा। जिसको नुकसान है वो अंग्रेजों का विरोध करेगा। जिसको लगता है कि अंग्रेजों का या कॉलोनियल रूल का अपोज करने वाला ये मूवमेंट रिवोल्ट ऑफ 1857 ये पुराने फ्यूडल ऑर्डर को दोबारा वापस ला रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। सेक्शन सपोर्टिंग द रिवोल्ट, पहली बात कि किस किस ग्रुप ने सपोर्ट किया, कौन न्यूट्रल रहा? तो सपोर्ट किसने किया? प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, सॉरी, सेक्शन सपोर्टिंग द रिवोल्ट, रिवोल्ट को सपोर्ट किसने किया? तो जिनका राज्य छिन गया था, डिस्पोज बाय एनेक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, जिनका राज्य छिन गया, राजाओं का, जमींदारों का, जिन पे सनसेट लॉ लग गया, ये भी बता दोगे। सेपॉइज का क्या था? एग्रीवेटेड बाई, उनकी अलग चैलेंजेस थी सेपॉइज में। ऐसे करके आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो कि पे डिस्पैरिटीज, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सर्विस कंडीशंस वेर नॉट सेम, कल्चरल इनसेंसिटिविटी, जिसमें आप वो ग्रीस कार्ट्रिजेस वगैरह पढ़ते हो, दैट इज द पॉइंट। पीजेंट्स में क्या था? बर्डन बाई हाई रेवेन्यू डिमांड एंड एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिजन्स अफेक्टेड बाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। रिवोल्ट ऑफ 1847 को अपोज किसने किया? कौन न्यूट्रल बना रहा? अपोज और न्यूट्रल। तो प्रिंसली स्टेट्स लाइक हैदराबाद, कश्मीर, दे रिमेन लॉयल। जिनको कॉलोनियल स्ट्रक्चर से फायदा हो रहा है, दे विल रिमेन लॉयल, दे विल प्रोटेक्ट ब्रिटिश इन इंडिया। जमींदार्स, लॉयल जमींदार्स, बेनिफिशियरीज ऑफ कॉलोनियल लैंड सेटलमेंट सपोर्टेड ब्रिटिश रूल। जिनको जो नए लैंड रेवेन्यू मॉडल्स आए थे, उसका एक पर्पज ये भी था कि इंडिया में टू क्रिएट अ क्लास ऑफ लॉयल जमींदार्स, है ना। अंग्रेज उसमें सफल रहे। मेनी जमींदार्स दे प्रोटेक्टेड ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1847। एडुकेटेड मिडिल क्लास पर्टिकुलरली इन बंगाल रिमेंड अलूफ या न्यूट्रल बना रहा, क्योंकि वो रिवोल्ट को फ्यूडल और रिग्रेसिव समझता था। हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है? नेशनलिस्ट क्या कहते हैं? इट वॉज अ ब्रॉड बेस्ड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। कैम्ब्रिज क्या कहते हैं? लोकलाइज था। फ्रेगमेंटेड अपराइजिंग, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में उनका वो है। सबल्टन क्या कहते हैं? पीजेंट एजेंसी पे फोकस इनका। रंजीत गोया, एरिक स्टोक्स क्या कहते हैं? रीजनल वेरिएशंस की बात करते हैं। अच्छा, ये एरिक स्टोक्स का जो है ना, रीजनल वेरिएशंस इन रिवोल्ट ऑफ 1847, यहां से भी क्वेश्चन आया है आपके ऑप्शन में, आगे मैं डिस्कस करूंगा। रीजनल वेरिएशंस रिवोल्ट ऑफ 1847, तो वहां पे आपको एक नया डायमेंशन मिल जाएगा रिवोल्ट ऑफ 1857 का। कंक्लूजन क्या है? दस द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं था, नॉट अ यूनिफॉर्म नेशनल अपराइजिंग, बट इट वाज अ कॉम्प्लेक्स मोजाइक ऑफ सपोर्ट एंड ऑपोजिशन। यानी ये यूनिफॉर्म रेस्पॉन्स नहीं था, नॉन यूनिफॉर्म रेस्पॉन्स था, अनइवन रेस्पॉन्स था। ये एक कॉम्प्लेक्स मोजाइक होगा। मोजाइक समझते हो ना, जहां पे अलग अलग पत्थर अलग अलग रंग के होते हैं, उसी को हम मोजाइक कहते हैं। तो मोजाइक एक सिंबॉलिक वर्ड है।
कि मोजाइक है, यानी कि सपोर्ट भी है, अपोजिशन भी है रिवोल्ट ऑफ 1847 का। एंड इट रिफ्लेक्ट्स डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को दिखलाता है, शेप्ड बाय द डिफरेंशियल इंपैक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल, कि हिंदुस्तान में अलग अलग समूहों पे कॉलोनियल रूल का इंपैक्ट अलग अलग रहा है। तो इंपैक्ट अलग अलग रहा है तो रेस्पॉन्सिव कितना आसान है कि देखो इंपैक्ट अलग अलग होगा, तो जैसा इंपैक्ट होगा वैसा रेस्पॉन्स होगा। क्या सब पे इंपैक्ट इक्वल होगा? नहीं। क्या इंपैक्ट इवन होगा? नहीं। तो रेस्पॉन्स भी क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। रेस्पॉन्स भी क्या होगा? अनइवन होगा। तो ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। ये कंक्लूजन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दिस कंक्लूजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बात आपको आंसर में लिखना ही लिखना है कि इंपैक्ट अनइवन था, अनइक्वल था, तो रेस्पॉन्स भी अनइवन और अनइक्वल था। और रेस्पॉन्स के बारे में जब हम लिखते हैं तो ऑब्वियसली ये चीजें क्लियर भी हो जाती हैं कि रेस्पॉन्स अनइवन कैसे था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सी, रिवॉल्यूशनरीज थीम क्या है? रिवॉल्यूशनरीज से जुड़ा हुआ है। रिवॉल्यूशनरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनालाइज हाउ द रिवॉल्यूशनरीज टॉट पीपल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वाइडेंड द सोशल बेस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। यानी कि रिवॉल्यूशनरीज ने लोगों को, यानी मासेस को, पीपल को सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी लोगों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत किया। रिजल्ट क्या रहा? अधिक से अधिक लोग फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े। देखो, वाइडनिंग द सोशल बेस ऑफ द मूवमेंट का ही मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मूवमेंट से आके जुड़े। अब एक मजेदार कहानी आपको सुनाऊं तो आप उससे ज्यादा बढ़िया रिलेट कर पाओगे। जैसे हम रिवॉल्यूशनरीज की बात कर रहे हैं, रिवॉल्यूशनरीज कौन है? तो देखो, अगर एक्सट्रीमिस्ट, इफ दे विल बिकम मोर रेडिकल, they will become revolutionaries. If the extremists, they will start believing in cult of a revolver and bomb, they will become revolutionaries. If extremists will start believing in the idea of political assassinations of unpopular officials, they will be what? Revolutionaries. If the extremists start believing in self-sacrifice, their life for the cause of the nation, they will become revolutionaries. And what are they doing? यहां पे ये क्या कर रहे हैं? They are becoming more radical. ठीक है, वो अधिक से अधिक रेडिकल होते चले गए। क्यों रेडिकल होते चले गए? क्योंकि लोगों के मन में जो औपनिवेशिक शासन का डर बैठा हुआ था, मनोवैज्ञानिक भय था, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बिकॉज ब्रिटिश ने क्या किया था? साइकोलॉजिकली आपके दिमाग को कैप्चर किया था। खुलेआम पुलिस स्टेशंस में लोगों को हैंग कर दिया करते थे, फांसी चढ़ा दिया करते थे। ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज में आज भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है ओपनली, तो दे ऑल्सो डू द सेम, क्योंकि दे वांटेड टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल फियर इन योर माइंड कि इंडिया की तुलना में ब्रिटेन एक छोटा सा देश, जनसंख्या छोटी सी, लेकिन हिंदुस्तानियों के दिमाग में भर दिया है कि भाई हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो वो जो फियर था, और एक दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल उनका भी है कि आइडियोलॉजिकल टूल्स भी यूज कर रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं आपसे, हम पावरफुल हैं आपसे। तो दिस साइकोलॉजिकल फियर, ये जो मनोवैज्ञानिक भय डर था, इसको निकालना बड़ा जरूरी था। ठीक है, जैसे मॉडरेट्स के साथ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि अगर इफ आई एम अ मॉडरेट लीडर, मैं मॉडरेट लीडर हूं, सपोज इन विलेजेस सम यूरोपियन ऑफिशियल्स केम, यूरोपियन ऑफिशियल्स आए और आप गांव के एक सीधे साधे ग्रामीण हो, आपके साथ उन्होंने मारपीट की, डंडे से आपकी पिटाई की, फिर वो चले गए, आप मेरे पास आओगे कि ब्रिटिश अथॉरिटीज केम, है ना, दे यूज्ड कोर्सिव मीन्स, है ना, ये सारी चीजें वो बताएंगे। तो व्हाट विल हैपन, है ना, एज अ मॉडरेट लीडर व्हाट आई विल से, मॉडरेट लीडर मैं क्या कहूंगा? मैं चिट्ठी लिखूंगा जाके, जो गांव में सिपाही आए थे, अंग्रेज सिपाही, उनके अधिकारियों को चिट्ठी लिखूंगा, ये बात मैं बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा, मैं कड़ी निंदा करता हूं इस चीज की। मेरा रेस्पॉन्स होगा, आई एम मॉडरेट। बट व्हाट रिवॉल्यूशनरीज विल से, एक्सट्रीमिस्ट क्या कहेंगे? एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे अच्छा पहचान लोगे उसको, कितनी देर पहले निकला है यहां से, चलो पकड़ते हैं उसको। और रिवॉल्यूशनरीज क्या कहेंगे? assassination of unpopular officials। वहां एक वर्ड मैंने यूज किया, unpopular officials। रिवॉल्यूशनरीज डोंट बिलीव कि किसी को भी जान से मार देना, ऐसा नहीं करते वो। अनपॉपुलर ऑफिशियल्स, जिनकी वजह से कई हिंदुस्तानियों की जान गई हो, उनका एसेसिनेशन करना। तो उनका ये कहना था कि इफ वी विल डू एसेसिनेशन ऑफ अनपॉपुलर ऑफिशियल्स, देन ब्रिटिश विल स्टार्ट फियरिंग इन इंडिया।
इंडियंस को डर लगता है, अंग्रेजों को डर लगने लगेगा। देखो एक टाइम ऐसा आता है, लिटन आर्म्स एक्ट लेके आता है। क्यों? टू डिसआर्म इंडियंस, है ना, टू कीप पोजीशन ऑफ फायर आर्म्स, हिंदुस्तानी हथियार ना रखें। तो आर्म्स एक्ट लाने की क्यों जरूरत पड़ी? कुछ ना कुछ डर तो इन लोगों ने दिमाग में भर ही दिया था ना। तो अगर हिंदुस्तानियों के दिमाग से वो साइकोलॉजिकल फियर खत्म कर दिया जाए तो अंग्रेजों से कोई डरेगा ही नहीं। भगत सिंह फांसी के फंदे पे हंसते हंसते झूल गए। क्यों? उनको पता था, ठीक है। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंका एक एम्प्टी चेयर पे और डिलिबरेटली जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दे दी, तो उनको तो पता था ना उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। बट वाई ही डिड सो, कि मेरा जो डेथ है, मेरी जो मृत्यु है, मेरा जो सेक्रीफाइस है, दिस विल इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपल, है ना। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वेरेवर वी रीड रिवॉल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशनरीज हैज वन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और वो क्या है? टू इंस्टिल सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द मासेस, लोगों के आत्मविश्वास को जागृत करना। हम ये भी कह सकते हैं कि टू ब्रिंग अ साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाना। And when people will not fear from British authorities, what will happen ultimately? They will join Indian national movement, and the social base of the movement will be widened. आंदोलन का जनाधार क्या होता जाएगा? वो बढ़ता जाएगा। जैसे आप देखो कि after Surat split, what we see that the brutal suppression or the repression of the extremist supporters of the extremist leaders ultimately did what? Extremist leaders were in jail. तो first phase of revolutionary activities started. पहला phase शुरू होता है ना? And in first phase, what we see that the supporters of these extremist leaders who were youth, they started believing in the cult of revolver and bomb. फिर गांधी will come, है ना, और गांधी के जो सत्य अहिंसा सत्याग्रह जैसी टेक्निक्स हैं, इस पे एक्सट्रीमिस्ट को भरोसा होता है। इसलिए मैंने बोला कि एक्सट्रीमिस्ट जो टूल्स हैं उनको मॉडरेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ गांधी ने जोड़ दिया। जैसे पैसिव रेसिस्टेंस, जैसे एक आप पढ़ते हो, जैसे मास मोबिलाइजेशन है ना, बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट टूल्स हैं जिनको गांधी जोड़ते हैं। बट वो क्या करते हैं कि मूवमेंट को डिसिप्लिन कर देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। प्लस स्वराज की मांग करते हैं, स्वराज विद इन 1 ईयर, है ना। तो मॉडरेट्स पे एक आरोप लगा कि वो क्या कर रहे हैं? टाइम खींच रहे हैं, ठीक है, कि 1885 के बाद 1905 तक 20 इयर्स में तो कुछ अचीवमेंट ही नहीं है, ऐसा एक आरोप लगता है। बट येस, देयर आर सम इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, बट अचीवमेंट्स आर लिमिटेड। तो दिस वी सी कि Gandhian movement, when it will start, so in between the revolutionary activities will be suspended, but the revolutionaries will again be disappointed when after Chauri Chaura the movement will be suspended. And in the meantime Russian revolution और जो global impacts हैं, तो socialism है, Russian revolution है, तो हम देखते हैं कि एक ideological support भी आता है ना। तो रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया? सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन यही था कि ब्रिटिश आर इनविंसिबल, अंग्रेज अजय है, इनको जीता नहीं जा सकता है, इस मिथ को तोड़ दिया रिवॉल्यूशनरीज ने। तो यही रीजन था भगत सिंह के टाइम में भगत सिंह की पॉपुलैरिटी, द पॉपुलैरिटी ऑफ भगत सिंह हैज सरपास्ड ऑलमोस्ट, यू कैन से दैट, मेनी इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ गांधी जी। एट दैट टाइम भगत सिंह वाज मोर पॉपुलर देन गांधी। भगत सिंह गांधी से भी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। तो ये ध्यान रखना है कि द आइडियाज कि वी रिजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को रिजेक्ट करते हैं। पिटीशन रिफॉर्म, हम क्यों पिटीशन और रिफॉर्म की आइडिया में विश्वास करें? वी विल डू डायरेक्ट एक्शन, हमारा देश है, हम क्यों मांगे अंग्रेजों से स्वराज? हम उनको यहां से खदेड़ देंगे, वो कौन होते हैं हमें स्वराज देने वाले, है ना। तो इस तरह की बात जो करेगा, बिलीव इन कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड रिवॉल्वर, assassination of unpopular officials, तो colonial state will start saying these revolutionaries as terrorist. colonial states ने इन revolutionaries को क्या कहना शुरू किया? terrorist, militant. लेकिन nationalist historian क्या कहेंगे? revolutionary nationalist. they are motivated और guided by the idea of patriotism. तो अभी भी देखो बहुत सारे colonial historians के मतलब राइटिंग से इंस्पायर्ड लोग जो हैं वो रिवॉल्यूशनरीज के लिए, है ना, मतलब ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, हालांकि बिपिन चंद्र ने भी यूज किया है कई जगह पे। रिवॉल्यूशनरीज के लिए टेररिस्ट या मिलिटेंट जैसे वर्ड का यूज करते हैं, तो हमें तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। वी विल से व्हाट? रिवॉल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट।
सो दिस इज अ बेटर थिंग, बेटर आइडिया, है ना. सो आई होप दैट यू हैव गॉट द आइडिया, है ना, द क्वेश्चन कि डायरेक्ट चैलेंज किया ब्रिटिश अथॉरिटी को, है ना. और साथ ही साथ जैसे भगत सिंह अरेस्ट हुए तो कोर्ट को, पब्लिक ट्रायल को एक प्लेटफॉर्म बना दिया. उस प्लेटफॉर्म से कॉलोनियल लेजिटिमेसी, औपनिवेशिक वैधता को चुनौती दी, है ना. हेरोइक सेक्रीफाइस, उनको पता था कि मेरे को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा. जेल में लोगों ने हंगर स्ट्राइक की, हंगर स्ट्राइक करके जान दे दिया. क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि हेरोइक सेक्रीफाइस, हम मरने से डरते नहीं है. दिस विल इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल, है ना. पंपलेट्स, स्लोगन्स, न्यूज़पेपर्स, इन सब का यूज किया. स्लोगन्स बहुत, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, है ना, ये नारा बहुत ही लोकप्रिय रहा. दैट रेसिस्टेंस is possible and it is justified. This is the meaning of इनकलाब जिंदाबाद. Resistance is possible and it is justified, है ना. तो obviously this will have a psychological impact on the minds of the people, है ना, कि people previously they were in a state of fear. Now there will be a psychological transformation. The people are filled with confidence and pride. This will encourage the Indian people to believe कि if we will make effort, द ब्रिटिश रूल कुड बी ओवरथ्रोन. तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मास मूवमेंट से आके जुड़ेंगे. बियॉन्ड पिटिशंस दे विल स्टार्ट बिलीविंग इन द आइडिया ऑफ एक्शंस. और सबसे ज्यादा ये किसको प्रभावित करेगा, आइडियोलॉजी, यूथ को, है ना. द कल्चर ऑफ आइडियलिज्म, सेक्रीफाइस, यूथ इससे सबसे ज्यादा जुड़ेगा. वर्कर्स भी जुड़ेंगे क्योंकि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट भी इसका हिस्सा बन जाता है. तो वर्कर्स विल ऑल्सो कम, पीजेंट्स विल ज्वाइन. और भगत सिंह, है ना, के बारे में आपको पता ही है. तो what we see gradually, we see that different people will come and join, and these revolutionaries were very much popular at grassroots level also, villages also. ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे केवल they were not only limited to the urban areas or educated masses, no, they were very popular among the rural areas. They were also very much popular among the uneducated masses. तो nationalist historians like Bipan Chandra writes कि these revolutionaries were filled with patriotism, करेज, और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को वो मास मूवमेंट से जोड़ के देखते हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक हिस्सा मानते हैं. दिस इज व्हाट द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस सी, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक हिस्सा है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, है ना. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन सुमित सरकार सेज कि पॉलिटिक्स को रेडिकलाइज किया रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ने, है ना, लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में बना रहा. सबल्टन कहते हैं कि इनकी ऑटोनोमस वॉइस थी, एक पॉपुलर रेसिस्टेंस था, और कॉलोनियल अथॉरिटी को बहुत ही सक्सेसफुली और ब्रेवरी के साथ डिफाई किया. रिविजनिस्ट हिस्टोरियन शेखर बंदोपाध्याय साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई इम्पैक्ट रहा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था. हालांकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखेंगे तो देयर वर मेनी लिमिटेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज. इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनकी योजनाएं, लास्ट में इन्हें भी इस बात को मानना पड़ा कि इंडिविजुअल हेरोइक सेक्रीफाइसेस से कुछ नहीं होगा, हमें जनता का सपोर्ट चाहिए, लोगों को साथ लेना होगा और अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा, तब हम शायद बेहतर कर सकते हैं. नाउ देयर आर टू मॉडल्स ऑफ द आंसर. सिंस दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, पता है ये सी वाला हमेशा 10 मार्कर ही होता है, चाहे वो 2C हो, 3C हो, 4C हो, 10 मार्कर होगा. ठीक है, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, ये 20 मार्कर होगा. और डरना नहीं है. आपको क्या बताया मैंने, पेपर ए मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री. तो यहां से क्या करोगे, पहला कंपलसरी है, वर्ल्ड हिस्ट्री से पहला कंपलसरी है, करना ही है. फिर मॉडर्न इंडिया में आपके पास बच जाता है 2 3 4, 3 क्वेश्चन. यहां भी बन जाते हैं 2 3 4, 3 क्वेश्चन. तो आपको यहां से कोई भी 2 क्वेश्चन चूज कर लेना है, एक तो वैसे भी छोड़ना है आपको, सब थोड़ी ना लिखना है. और वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर यहां से 2 चूज कर लिया तो 2 आपको नहीं लिखना है. तो पेपर उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना लगता है. इट इज अ डिफरेंट थिंग दैट आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन. बट अगर आप PYQs 10 साल का देख लो मेरी क्लास, मतलब इस तरह से जैसा मैं करा रहा हूँ, ये नहीं कि इसमें ये लिख दो, इसमें ये लिख दो, इसमें लिख दो, थोड़ा बढ़िया से. ठीक है, अगर आपने PYQ पढ़ लिया तो फिर तो ऐसे ही पेपर आपका अच्छा हो जाएगा. ठीक है, और जितना इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे मैं कहता हूँ कि PYQ डिस्कशन, इसके बिना तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते ऑप्शनल कोर्स को. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करती हैं कि PYQ डिस्कशन किसी मेंटर से करवा देंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो बस हमारा रोज उठना बैठना है मोदी जी के साथ, हम बहुत बिजी टीचर हैं. ठीक है, अरबों रुपए कमाते हैं, तो ये छोटा मोटा काम है, ये मेंटर कर लेगा. ये छोटा मोटा काम नहीं है भैया, यही काम आपको करना है जो ऑप्शनल की फैकल्टी है, मेंटर के भरोसे नहीं छोड़ना है. इसी तरह से मैपिंग एक पोर्शन है,
इसको भी इतना इग्नोर किया ऑप्शनल के टीचर्स ने, पढ़ाते ही नहीं है, और पढ़ाते भी हैं तो 1-2 घंटे ऐसे पढ़ाते हैं जैसे एहसान उतारता है कोई, ठीक है, कि है तो चलो बता दे रहा हूं, प्रिंटेड बुकलेट से देख लेना। नहीं, यही 2 कमियां हैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल का लगातार बेड़ा गर्क कर रही है 10 साल से, है ना। एक अच्छा खासा ऑप्शनल, इसमें भी एक फ्यूडलिज्म आ गया है, लोग जमीन जायदाद घर कब्जा करते हैं, यहाँ कुछ लोग ऑप्शनल ही कब्जा करके बैठ गए हैं। तो कब्जा करना ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, है ना, ऑनेस्ट एफर्ट होना चाहिए। मेरी बातें कड़वी हैं बट सच्ची है। एक अभ्यर्थी के तौर पर मैंने जो चुनौतियां झेली हैं, कहीं ना कहीं वही असंतोष अभिव्यक्त होता है मेरी बातों में। तो आपको समझना है कि हमें भी अपना ऑनेस्ट एफर्ट करना है बच्चों के साथ, है ना, ये चीजें हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इन पैराग्राफ फॉर्म, चूंकि दिस क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स, तो 150 वर्ड्स लिखना है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। हालांकि ये थोड़ा सा मतलब फॉर्मेट गड़बड़ हो गया है, ये मेन बॉडी का हिस्सा है यहाँ से, एंड दिस इज व्हाट कंक्लूजन, ठीक है ना। सो दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज कंक्लूजन, दिस इज मेन बॉडी। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा मैंने, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द साइकोलॉजिकल एंड सोशल डायमेंशन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। साइकोलॉजिकल डायमेंशन की बात की, सोशल डायमेंशन की बात की। साइकोलॉजिकल समझ गया ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सबसे जोड़ दोगे। थ्रू एक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस एंड डिफेंस, राजनीतिक हिंसा, है ना, और डिफेंस, ये जो एक्ट्स हैं, दे शैटर्ड द मिथ ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी। जो ब्रिटिश अजेय हैं, इनविंसिबल हैं, ये मिथक तोड़ दिया। एंड इंस्टिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग इंडियंस, इससे भारतीयों के अंदर आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाया। द हेरोइक एक्शंस ऑफ रिवॉल्यूशनरीज सच एज भगत सिंह एंड HSRA popularized the idea that colonial rule could be actively resisted। मतलब HRA या भगत सिंह, तो सबका तो हम लिख नहीं सकते ना कि अनुशीलन वगैरह सब लिख दें, तो फिर तो फैक्ट ओवरलोड हो जाएगा। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट नेम भगत सिंह है तो नाम दे दिया कि भगत सिंह और HSRA के जो एक्शंस थे उनसे यह आइडिया पॉपुलराइज हुआ दैट कॉलोनियल रूल कुड बी एक्टिवली रेसिस्टेड, फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस, की जो औपनिवेशिक शासन है इसको हम रेसिस्ट कर सकते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं, अंग्रेजों को हम हिंदुस्तान से खदेड़ सकते हैं अगर हम हिम्मत जुटा लें। मोreover, revolutionary activities attracted a wide spectrum of society, particularly कौन अट्रैक्ट हुआ revolutionary activities से, अर्बन यूथ, स्टूडेंट्स एंड सेक्शंस ऑफ द लोअर मिडिल क्लास, ये अट्रैक्ट हुआ। देयर एम्फेसिस ऑन सेक्रीफाइस, नेशनलिज्म एंड लेटर सोशलिस्ट आइडियाज भी इससे आके जुड़ गए। तो सोशलिस्ट आइडिया जुड़ेगा तो पीजेंट वर्कर को तो ये अपील करेगा ही करेगा। इट हेल्प्ड टू ब्रॉडन द आइडियोलॉजिकल अपील ऑफ द मूवमेंट। सोशलिज्म इसके साथ जुड़ेगा तो पीजेंट वर्कर को जुड़ेगा। सुमित सरकार नोट्स दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सुमित सरकार कहते हैं कि इससे जो इंडियन पॉलिटिक्स है इसका रेडिकलाइजेशन हुआ। हाउएवर देयर इंपैक्ट रिमेन्ड लिमिटेड, इनका प्रभाव सीमित रहा बाय वीक मार्क्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड अर्बन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, लिमिटेड बाय वीक मास ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बन कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए, मतलब एक बात ध्यान रखना, दे वर पॉपुलर अमॉन्ग द विलेजेस, लेकिन इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी थी इसकी बात हो रही है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो था ना, है ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। दे वर पॉपुलर अमॉन्ग द विलेज बट देयर ऑर्गेनाइजेशंस वर हैविंग some limitations. Despite this, their psychological influence and inspirational value significantly widened the social base of the freedom movement. उनका psychological influence और जो inspirational value है इसने freedom movement के social base को widen किया and complemented the broader nationalist struggle. और जो broader nationalist struggle है इसको complement किया, इसके पूरक के रूप में काम किया। Now if you write the same answer in bullet format, the answer will be like this. Introduction. रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट, देखो यहां पे हमने टेररिस्ट नहीं लिखा, फॉर्म्ड अ सिग्निफिकेंट स्टैंड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तो नेशनल मूवमेंट का नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का अप्रोच है ना, कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग नॉट ओनली थ्रू डायरेक्ट एक्शन बट ऑल्सो बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट्स साइकोलॉजिकल एंड सोशल डायमेंशंस। यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के साइकोलॉजिकल और सोशल डायमेंशंस को भी ट्रांसफॉर्म किया। मेन बॉडी में वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल रोल, सोशल बेस एक्सपेंशन, ideological contribution, and lastly we are talking about limitations. So first we will talk about psychological impact.
इट चैलेंज द मिथ ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी, अंग्रेज अजय है इस बात को चैलेंज किया। इंस्पायर्ड करेज, सैक्रिफाइस एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म, एक्शंस ऑफ भगत सिंह बिकेम सिंबल्स ऑफ सैक्रिफाइस एंड डिफेंस। ऑर्गेनाइजेशनल रोल, ग्रुप्स लाइक HSRA प्रोमोटेड आर्म्ड रेसिस्टेंस। देखो HRA का ही नाम आगे HSRA बदल गया, तो एक ही आप एग्जांपल लिखा करो, दोनों मत लिखो HRA HSRA नहीं, एक लिख दो HSRA। सोशल बेस एक्सपेंशन, अट्रैक्टेड अर्बन यूथ, स्टूडेंट्स एंड लोअर मिडिल क्लास, एंड इट स्प्रेड आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, लेटर सोशलिज्म, ये भी जुड़ गया। आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, सुमित सरकार क्या कहते हैं दैट दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इसने इंडियन पॉलिटिक्स को रेडिकलाइज किया। लिमिटेशंस क्या है, तो वीक मास बेस्ड एंड अर्बन कंसंट्रेशन, बट दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये और संगठन के बारे में है। लैक ऑफ सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है। कंक्लूजन क्या है, दस डिस्पाइट ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशंस, देखो यहां ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशंस की बात की, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट्स significantly widened the social and psychological base of the freedom struggle। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट ने क्या किया, जो साइकोलॉजिकल और सोशल बेस है फ्रीडम मूवमेंट का, इसको वाइडन किया, विस्तारित किया, एंड इट कॉम्प्लीमेंटेड द मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म और मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट। इसने मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म या मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट को कॉम्प्लीमेंट किया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3C दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ इफ यू लुक एट दिस पेपर, बार बार मैं आपको बताता हूं कि मॉडर्न और वर्ल्ड, इसमें से आपको मॉडर्न से कंपलसरी के अलावा 3 क्वेश्चन में से कोई 2 लिखना है, और अगर यहां आपने 2 लिख लिया तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन में से केवल 1 लिखना है। तो हमने यहां तो कर ही लिए ना 3 क्वेश्चन। अब इन नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी द पार्ट डी ऑफ आवर क्लास, नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4A, B एंड C। तो वीडियो को सिक्वेंस में देखिए, और आप जैसे मेरे साथ साथ जैसे 1 वीडियो 1 डे, तो यू विल प्रैक्टिस 3 क्वेश्चंस इन 1 डे। अब आप ऐसे एक सिस्टम अगर आपने डेवलप कर लिया, यू आर वॉचिंग 1 वीडियो 1 डे, यू आर प्रैक्टिसिंग 3 क्वेश्चंस 1 डे, 2 क्वेश्चन 20 मार्कर प्रैक्टिस कर रहे हो, 1 क्वेश्चन 10 मार्कर कर रहे हो। आप वीडियो देख रहे हो तो एट द सेम टाइम आपके कॉन्सेप्ट्स भी पहले से ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, है ना। प्लस राइटिंग के लिए कुछ आपको इनपुट मिल रहा है, इंपॉर्टेंट इनपुट मिल रहा है। गॉट इट? तो इसको देखिए, है ना, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।